Hello all of you. I, Professor Swapnil Jadhav, welcome you all on behalf of JK Shah classes in this revision series. In today's session, we are going to revise clubbing of income, which is relevant for your upcoming exam, that is September 24 as well as January 25. Now, as you all know, in case of clubbing of income, guys, we have a series of sections 60 to section 65. Section 60 to 65 series deals with clubbing of income. First of all the 5 heads of income will be added. After addition of all 5 heads of income, we will get gross total income. From gross total income, if you reduce deduction under chapter 6, you will get net taxable income. And on net taxable income, we are liable to pay tax to government. In case of clubbing of income, first of all, generally, why this concept of clubbing has been introduced by government? Generally, assessee is liable to pay tax on his own income only. But in case of clubbing of income, assessee is liable to pay tax on income of another person. The best example of clubbing is income of minor children shall be club in the hands of parents. As you all know, minor children का जो income है, that will be club in the hands of parent. So parent, they are going to pay tax to government on behalf of minor children. So can I say that income is not belongs to parents? On behalf of minor child, parent will going to pay tax to government. So therefore that is called as clubbing of income. Now why this concept of clubbing is generally introduced by government? Usually higher income assessee, in order to avoid tax liability or in order to minimize tax liability, deliberately they will transfer either income or asset to another person. Maybe spouse को ट्रांसफर किया, सन्स वाइफ को ट्रांसफर किया, माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर किया, दोज हु आर नॉट हैविंग सोर्स ऑफ इनकम, उनको जानबूझ के असेट ट्रांसफर करके they will minimize their tax liability. So because of this, government introduced the concept of clubbing of income. Okay? That was a small introduction about this topic. Let me talk first section 60, guys. We will discuss this chapter on section series wise only. First section 60, that is about transfer of income. Suppose as a CA, I am having multiple source of income. मुझे कुछ rent income मिल रहा है. I am getting some dividend income also. I am getting some professional fees also. Suppose if I transfer my dividend income to one of my student, only dividend income is transfer. I have not transfer ownership of shares. सिर्फ dividend income I have transferred to one of the student of JK Shah classes. Now tell me, in this case, legally student और मेरे बीच में दोनों के बीच में agreement बना and I am transferring dividend income. Now you may ask me, sir, why you are transferring that income? Basically, I just want to minimize my tax liability. Therefore, I am transferring my dividend income to one of the student. Because student अभी तक they are not having source of income. So I will claim basic exemption limit of rupees 2,50,000 also in the hands of student. So student को मैंने dividend income transfer किया और government को बोल रहा हूँ कि mutually we have transferred dividend income to the one of the student. Now tell me, suppose 2 लाख रुपीस का dividend income है. स्टूडेंट जब भी अपना रिटर्न फाइल कर रहा है तभी वो टाइम पे दिखा रहा है कि 2 लाख रुपीस ही इनकम है, which is less than 2,50,000, which is less than basic exemption limit. Therefore, he is not liable to pay tax to government. But shares का ownership अभी भी मेरे पास ही है. In this case, government is saying that you have not transfer ownership of asset. You are simply transferring income. ऐसे अगर अलाउ किया जाएगा तो मुकेश अंबानी अपनी इनकम बहुत सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करके कभी गवर्नमेंट को टैक्स ही नहीं पे करेगा. So if you are transferring income without transfer of ownership, now why I am not transferring ownership? Because if I transfer ownership of asset in the form of gift, can I say gift wala provision is also applicable? So in order to avoid that, I have simply transfer income. Acha, to whom you are transferring income? Any person. Not necessary it should be transferred to relatives only. किसी भी person को आपने सिर्फ income transfer किया है without transfer of ownership. In that cases, whatever income you transfer, that income by default club in the hands of transferor. So in my example, मैंने जो dividend transfer किया था, shares का अभी भी ownership मेरे पास है. Whether that dividend income shall be taxable in the hands of student or me only. So जो भी dividend income है वो dividend income मेरे हाथ में क्या किया जाएगा? Taxable किया जाएगा. One small example also I have written over here. Mr. A transferred debenture interest 60,000 without transfer ownership of debenture to Mr. B. In this case, Mr. A is a transferor and Mr. B is a transferee. So बताओ, यहाँ पे ownership is not transfer, only income is transfer. Income is transfer means provisions of section 60 will be attracted, and because of section 60, this income is not taxable in the hands of transferee. It is club in the hands of transferor only, that is Mr. A.
So this 60,000 is taxable in the hands of Mr. A, that is transferor. A very small and simple section, that is section 60. Now अभी मैंने डिविडेंड ट्रांसफर किया विदाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, तो वैसे वाले केसेस में सेक्शन 60 अट्रैक्ट हो रहा है. तो मैंने क्या डिसाइड किया कि चलो अभी मैं शेयर्स का ओनरशिप भी ट्रांसफर करता हूं. तो मैंने डिविडेंड के साथ साथ शेयर्स का ओनरशिप भी ट्रांसफर किया. शेयर्स का ओनरशिप ट्रांसफर किया, इतनी बड़ी रिस्क ले रहा हूं मैं क्योंकि 60-70 लाख रुपए के शेयर्स है, इतना मैं नॉर्मली ट्रांसफर किया. तो कल उठ के अगर वो स्टूडेंट ने सर वो शेयर्स ओपन मार्केट में बेच दिए तो नॉर्मली फिर वैसे वाले केस में मेरे पैसे तो गए. इसके लिए मैंने उसके साथ में एक सेल एग्रीमेंट बना था, और एग्रीमेंट में आई हैव मेंशन वन क्लॉज दैट इन फ्यूचर दैट स्टूडेंट इज गोइंग टू सेल दैट शेयर्स टू मी ओनली. मतलब वो ओपन मार्केट में शेयर्स बेच नहीं सकता, रिटर्न में उसको शेयर्स मुझे ही बेचना पड़ेगा, एंड दैट टू वॉट एवर प्राइस है डिसाइडेड बाय मी, वो प्राइस पे ही मुझे वो शेयर्स रिटर्न करेगा. सपोज मैं डिसाइड कर रहा हूं कि 15-20 इयर्स के बाद मैं रिटायरमेंट ले लूंगा. मीनवाइल 15-20 इयर्स के बाद मेरा कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा, तो मैं शेयर्स फिर से रिटर्न स्टूडेंट के पास से ले लूंगा. सो आई हैव ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ असेट आल्सो एज वेल एज इनकम आल्सो. क्या सेक्शन 60 एप्लीकेबल होगा? आंसर इज नो सर, बिकॉज सेक्शन 60 बोलता है सिर्फ और सिर्फ आपने इनकम ट्रांसफर किया विदाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. बट इन दिस एग्जाम्पल मैंने डिविडेंड के साथ साथ शेयर्स भी ट्रांसफर किए. अभी शेयर्स ट्रांसफर किए, लेकिन आफ्टर 15 और 18 इयर्स वो शेयर्स फिर से मेरे पास ही आने वाले हैं. दैट टू ओपन मार्केट में फ्री कंसेंट लिए बिना, मेरे कंसेंट के बिना वो स्टूडेंट वो शेयर्स ओपन मार्केट में बेच नहीं सकता. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट ने इस ट्रांसफर को नाम दिया रिवोकेबल ट्रांसफर. रिवोकेबल ट्रांसफर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 63. रिवोकेबल ट्रांसफर मतलब आइदर असेट जो है असेट वो आपके पास रीट्रांसफर किया जाएगा, या तो फिर नॉर्मली जो इनकम है उस असेट से वो ट्रांसफर के साथ शेयर किया जाएगा. अगेन रिपीट, अगर असेट आपने बेचा है तो गवर्नमेंट बोल रही है कि असेट के ऊपर राइट्स जो है वो राइट्स ट्रांसफर री का होना चाहिए, ना कि ट्रांसफर रर का. अभी भी इस एग्जाम्पल के हिसाब से कहने से उस शेयर्स के ऊपर राइट ट्रांसफर रर एक्सरसाइज कर रहा है. इस रीजन के से गवर्नमेंट बोल रही है कि अभी भी ट्रांसफर रर का कंट्रोल है, तो हम लोग इस ट्रांसफर को रिवोकेबल ट्रांसफर मानेंगे. इरिवोकेबल नहीं, रिवोकेबल ट्रांसफर. रिवोकेबल ट्रांसफर मतलब दैट इज आइदर इनकम उस असेट से रीट्रांसफर किया जाएगा, या तो फिर असेट ट्रांसफरर के पास रीट्रांसफर किया जाएगा. डायरेक्टली भी हो सकता है या तो फिर इनडायरेक्टली भी हो सकता है. जैसे एग्जांपल, स्टूडेंट ने वो असेट मेरे नाम पे ना देते हुए मेरे वाइफ के नाम पे दिया, और वाइफ ने बाद में मुझे दिया, तो इनडायरेक्टली वो असेट मेरे पास ही आ रहा है. या तो फिर वो असेट से जो डिविडेंड है वो डिविडेंड पार्ट ऑफ द इनकम मेरे साथ शेयर किया जा रहा है. दोनों भी केसेस में इस ट्रांसफर को कौन सा ट्रांसफर कहा जाएगा? रिवोकेबल. एंड इफ इट इज अ रिवोकेबल ट्रांसफर, तो वैसे वाले केसेस में इनकम जो है इनकम वो किसके हाथ में क्लब की जाएगी? ट्रांसफरर के हाथ में. मतलब सेक्शन 61 में ट्रीटमेंट बोलता है कि अगर रिवोकेबल ट्रांसफर है, इन दैट केसेस इनकम शैल बी क्लब इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर ओनली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चेक करना है कि वेदर ट्रांसफर रिवोकेबल है या नहीं. हाउ टू आइडेंटिफाई सर वेदर ट्रांसफर इज रिवोकेबल और इरिवोकेबल? तो ये चेक करो, असेट ट्रांसफर करने के बाद क्या ट्रांसफरी के पास से कुछ इनकम ट्रांसफरर को शेयर हो रहा है, या ट्रांसफरी के पास से वो असेट ट्रांसफरर के पास फिर से रीपोजिशन हो रहा है. डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ भी हुआ तो वैसे वाले केसेस में उस ट्रांसफर को रिवोकेबल ट्रांसफर माना जाएगा. एंड ट्रीटमेंट ऑफ रिवोकेबल ट्रांसफर एज पर सेक्शन 61 इज इनकम शैल बी क्लब इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर ओनली. ठीक है, सो दैट वाज 3 sections. Again repeat, section 60 you transfer income without transfer of ownership. Section 61 that is about transfer of income with transfer of ownership, but that transfer is revocable transfer. What do you mean by revocable transfer? That is defined under section 63. Now बीच में एक section का missing है, that is section 62. What is the section 62 is for sir? Section 62 is exception, that is a proviso तुम लोग बोल सकते हो of revocable transfer. लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर आपने ट्रांसफर किया है, भले वो असेट आपके पास रीट्रांसफर हो रहा है, या मे बी वो असेट से जो इनकम है वो इनकम नाउ में रीट्रांसफर किया जा रहा है, फिर भी हम लोग उस ट्रांसफर को इरिवोकेबल ट्रांसफर मानेंगे, प्रोवाइडेड सेक्शन 60 में जो कंडीशंस है वो कंडीशन नॉर्मली फुलफिल होने चाहिए. जैसे कि अगर कोई असेट आपने ट्रस्ट को ट्रांसफर किया है, जैसे मैं एग्जांपल रेगुलर क्लासेस में सलमान खान का लेता हूं. अज्यूम करो कोई कैंसर पेशेंट है, कैंसर पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए. उस ट्रीटमेंट के पैसे के लिए उसने अप्रोच किया सलमान खान को. सलमान खान ने अपना जो पनवेल वाला बंगलो है फार्म हाउस, उसने वो पनवेल वाला फार्म हाउस ट्रांसफर किया अज्यूम करो
बीइंग ह्यूमन चैरिटेबल ट्रस्ट को। बीइंग ह्यूमन चैरिटेबल ट्रस्ट को ट्रांसफर करके बोला कि जो भी इस बंगलो से इनकम आएगा, रेंटल इनकम, वॉट एवर इनकम दे विल अर्न, वो इनकम उस कैंसर पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाएगा। एंड आफ्टर डेथ ऑफ दैट कैंसर पेशेंट वो बंगलो फिर से सलमान खान को रीट्रांसफर किया जाएगा। मैं फिर से फैक्ट्स बोलता हूं, सलमान खान ने अपना पनवेल वाला जो फार्म हाउस है वो बीइंग ह्यूमन चैरिटेबल ट्रस्ट को ट्रांसफर किया। उससे जो भी यील्ड आ रहा है, इनकम आ रहा है, दैट इनकम विल बी यूटिलाइज फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट कैंसर पेशेंट। आफ्टर डेथ ऑफ दैट कैंसर पेशेंट इनकम जो वो रीट्रांसफर किया जाएगा सलमान खान को। इस पूरे एग्जाम्पल में कहने से सलमान खान का कोई टैक्स इवेजन का ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां पे सोशल ऑब्जेक्ट के हिसाब से असेट ट्रांसफर किया गया। सो इफ यू आर ट्रांसफरिंग एनी असेट टू ट्रस्ट और वो रिवोकेबल नहीं है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बेनिफिशियरी, इन दिस एग्जांपल हु इज अ बेनिफिशियरी, दैट कैंसर पेशेंट इज अ बेनिफिशियरी, उसके लाइफ टाइम तक फिर से वो असेट रीट्रांसफर नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल हुई तो गवर्नमेंट उस ट्रांसफर को हम लोग इरिवोकेबल ट्रांसफर मानेंगे। मतलब रिवोकेबल ट्रांसफर नहीं, उसको हम लोग इरिवोकेबल ट्रांसफर मानेंगे। एंड इरिवोकेबल ट्रांसफर माना, इसका मतलब इनकम जो है वो इनकम शैल बी क्लब इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरी, मतलब बेनिफिशियरी उसके हाथ में टैक्सेबल होगा, ट्रांसफरर के हाथ में नहीं। मतलब यहां पे क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल या नॉट एप्लीकेबल? आंसर इज नॉट एप्लीकेबल। अगर आप सेक्शन 62 में फॉल हो गए तो आपको क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। सेकंड वाला केस क्या है कि अगर सलमान ने वो असेट ट्रस्ट को नहीं, डायरेक्टली वो कैंसर पेशेंट को ट्रांसफर किया और बोला लाइफ टाइम तक जो भी बेनिफिट है वो बेनिफिट लेते रहना, उसके बाद में वो फिर से असेट को रीट्रांसफर करवा देना। इन दिस केसेस असेट आपने ट्रस्ट को ना ट्रांसफर करते हुए डायरेक्टली बेसिकली ट्रांसफर किया ट्रांसफरी को, तो भी वो इरिवोकेबल ट्रांसफर के केसेस में कवर किया जाएगा। मतलब इन शॉर्ट सेक्शन 62 में अगर आपने असेट ट्रस्ट को ट्रांसफर किया या तो फिर डायरेक्टली ट्रांसफरी को ट्रांसफर किया है, लेकिन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम वो असेट फिर से नॉर्मली रीट्रांसफर नहीं होना चाहिए। रीट्रांसफर हुआ तो सेक्शन 62 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर सेक्शन 62 का बेनिफिट नहीं मिलेगा इसका मतलब वो इरिवोकेबल नहीं, वो कौन सा ट्रांसफर होगा? रिवोकेबल ट्रांसफर। रिवोकेबल ट्रांसफर है मतलब ऑफ कोर्स एज पर सेक्शन 61 इनकम सलमान के हाथ में क्लब किया जाएगा। वन मोर थिंग, ये सेक्शन 62 का बेनिफिट मिलेगा प्रोवाइडेड दैट सलमान को कुछ भी यहां से बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। मतलब अज्यूम करो फार्म हाउस से यील्ड रेंटल इनकम मिल रहा है, अज्यूम करो 15 लाख, उसमें से सिर्फ 10 लाख रुपीस वो कैंसर पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए यूज हो रहा है, रिमेनिंग 5 लाख रुपीस सलमान को पे किया जा रहा है पॉकेट मनी के हिसाब से। तो आप बोलो 5 लाख रुपीस सलमान को मिल रहा है, 10 लाख रुपीस पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जा रहा है। तो कहना से यहां पे पूरा बेनिफिट बेनिफिशियरी के पास नहीं जा रहा है, पार्ट ऑफ द बेनिफिट ट्रांसफरर को मिल रहा है। पार्ट ऑफ द बेनिफिट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ भी बेनिफिट ट्रांसफरर को मिला तो एंटायर इनकम शैल बी क्लब इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। मैंने ऐसे एंटायर इनकम मतलब सिर्फ 5 लाख नहीं, पूरा 15 लाख रुपीस इनकम जो है वो सलमान के हाथ में क्लब किया जाएगा। बिकॉज गवर्नमेंट सेक्शन 62 का एक्सेप्शन का बेनिफिट मिलेगा प्रोवाइडेड एंटायर इनकम जो है वो बेनिफिशियरी के बेनिफिट के लिए यूज किया जाएगा। कुछ भी पार्ट ऑफ द इनकम अगर ट्रांसफरर के बेनिफिट के लिए यूज हो रहा है सो एंटायर इनकम शैल बी क्लब इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर ओनली। सो दैट वाज योर सेक्शन 62। सो फिर से बोलता हूं, मैंने 4 सेक्शन बोले, 4 सेक्शन बेसिक सेक्शन से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू 60, 61, 63 एंड 62। सेक्शन 60, if you transfer any income without transfer of ownership then income shall be club in the hands of transferor only. सेक्शन 61, अगर आपने इनकम के साथ साथ ओनरशिप ट्रांसफर किया है सो ओनरशिप के केसेस में जो इनकम आ रही है वो इनकम ट्रांसफरर के हाथ में क्लब होगी अगर वो ट्रांसफर आपका रिवोकेबल ट्रांसफर है। व्हाट डू यू मीन बाय रिवोकेबल ट्रांसफर? दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 63। 63 के हिसाब से आइदर इनकम फ्रॉम दैट ट्रांसफर और असेट ट्रांसफरर के साथ शेयर हो रहा है तो उस ट्रांसफर को हम लोग रिवोकेबल ट्रांसफर मानेंगे। एंड इफ इट इज अ रिवोकेबल ट्रांसफर तो इनकम जो है वो ट्रांसफरर के हाथ में क्लब किया जाएगा बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 61 के हिसाब से। बट सेक्शन 62 में इसका एक प्रोवाइजो भी है, इफ यू आर ट्रांसफरिंग असेट टू ट्रस्ट और टू द बेनिफिशियरी टिल द लाइफ टाइम ऑफ बेनिफिशियरी, इन दैट केसेस वो इनकम जो है वो इनकम बेनिफिशियरी के हाथ में टैक्सेबल होगा ना कि ट्रांसफरर के हाथ में, प्रोवाइडेड दैट transferor should not derive any benefit directly or indirectly from such transfer. Entire income should be utilized for the benefit of beneficiary only. Only in this cases section 62 exception is available and वैसे वाले केसेस में इनकम जो है इनकम shall be clubbed in the hands of transferee, that is beneficiary के हाथ में टैक्सेबल होगा। So exam point of view these are the बेसिक सेक्शन। सेक्शन 60 के ऊपर थोड़ा सा तुम लोग इंपॉर्टेंस रख सकते हो, बाकी तुम लोग के बेसिक सेक्शन है। इंपॉर्टेंट जहां पे ज्यादा एग्जामिनर टारगेट करेगा दैट इज सेक्शन 64। लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 64 गाइस।
चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट सेक्शन 64 का सीरीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सेक्शन 64 में सबसे पहले वी हैव रेम्यूनरेशन टू स्पाउस। ये सेक्शन क्या है, इसके पहले इसका बैकग्राउंड समझो। अज्यूम करो कोई पार्टनरशिप फर्म है, मेसर्स एबीसी पार्टनरशिप फर्म। मेसर्स एबीसी पार्टनरशिप फर्म में ए, बी एंड सी ऑल थ्री पार्टनर्स आर इक्वल पार्टनर्स, मतलब तीनों पार्टनर्स का 1/3 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, दैट इज 33.33% है। ए, मिस्टर ए पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म के पास से शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, रेम्यूनरेशन मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट तो पार्टनर्स के हाथ में फुल्ली एग्जिम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 2A, बिकॉज ऑलरेडी उसके ऊपर फर्म ने 30% का टैक्स पे किया रहेगा। बट रेम्यूनरेशन जो है, रेम्यूनरेशन याद करो पीजीबीपी, रेम्यूनरेशन फर्म के लिए कहने से वो एक्सपेंसेस है, पार्टनर के लिए वो क्या बन जाएगा, इनकम बन जाएगा। वॉट एवर रेम्यूनरेशन पेड टू वर्किंग पार्टनर, फर्म के लिए वो क्या बनेगा, एक्सपेंसेस, पार्टनर के लिए वो इनकम बनेगा। सेक्शन 40 सबसेक्शन बी के हिसाब से लिमिट भी था बुक प्रॉफिट के हिसाब से। लेट्स अज्यूम दैट रेम्यूनरेशन पे हो रहा है 10 लाख रुपीस और मिस्टर ए की अदर इनकम है 45 लाख रुपीस। 45 लाख रुपीस प्लस 10 लाख रुपीस का रेम्यूनरेशन ऐड करोगे तो टोटल इनकम 55 लाख रुपीस होगा। मैं बोलूं 55 लाख रुपीस मींस इट इज मोर देन 50 lakhs, एंड बिकॉज ऑफ मोर देन 50 lakhs वो 5 लाख रुपीस इनकम बढ़ने की वजह से मिस्टर ए इज लाइबल टू पे सरचार्ज टू गवर्नमेंट। नाउ मिस्टर ए डोंट वांट टू पे एनी सरचार्ज टू गवर्नमेंट, सो इसके लिए उसने डिसाइड किया कि उसकी वाइफ मिसेस ए, सिर्फ कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सेंटी मत होना। मिसेस ए अज्यूम करो ये 5th स्टैंडर्ड फेल है, मिसेस ए जो है वो 5th स्टैंडर्ड फेल है, मींस शी इज नॉट हैविंग एनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शी डज नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस इन द मार्केट। मिस्टर ए ने सोचा कि यार वाइफ का बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2,50,000 या 3 लाख जो भी है वो भी तो वेस्ट जा रहा है, तो हम लोग ये दिखाएंगे कि मिसेस ए ये पार्टनरशिप फर्म में जॉब कर रही है, काम कर रही है, मतलब उसको क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा। तो अपना 10 लाख का रेम्यूनरेशन में से 7 लाख का रेम्यूनरेशन उसने क्या दिखाया, सैलरी के फॉर्म पे दिखा, और खुद के नाम पे 3 लाख रुपीस का रेम्यूनरेशन उठा रहा है। अभी 45 लाख प्लस खुद का 3 लाख रुपीस का रेम्यूनरेशन, ऐसे मिलके 48 लाख रुपीस हुआ। और मिस्टर ए बता रहा है कि 7 लाख रुपीस मिसेस ए का इनकम है, मिसेस ए के हाथ में वो 7 लाख रुपीस में से 50,000 का स्टैंडर्डेशन एंड रिमेनिंग इनकम उसके हाथ में टैक्सेबल किया जाएगा एज पर हर स्लैब रेट। अभी आप मुझे बोलो यहां पे कहने से टैक्स प्लानिंग हुई है। सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 बोलता है कि अगर आपका किसी भी एंटिटी में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट मतलब 20% या उससे ज्यादा होल्डिंग है, और वहां से अगर आपको स्पाउस को कुछ भी रेम्यूनरेशन पे हो रहा है, स्पाउस को कुछ भी रेम्यूनरेशन पे हो रहा है विदाउट एनी नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। भी तेरा डाउट आएगा सर हमको कैसे पता चलेगा, या इनकम टैक्स ऑफिसर को कैसे पता चलेगा ये विदाउट एनी नॉलेज, एक्सपीरियंस या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। सी प्रैक्टिकल लाइफ में असेसमेंट के टाइम पे ये सब क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, असेसी खुद थोड़ी ना सामने से ये बताएगा, बट असेसमेंट के टाइम पे अगर असेसिंग ऑफिसर को अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मिली तो ये सेक्शन का रेफरेंस लेके वो इनकम क्लब करने की कोशिश करेगा। आपको प्रूफ करना है एज अ असेसी वेदर वो जेन्युइन कैपेसिटी में रेम्यूनरेशन पे हुआ है कि नहीं हुआ है, अदरवाइज ऑफिसर तो ये सेक्शन लेके वो इनकम आपके हाथ में बाय डिफॉल्ट क्लब करने की कोशिश करेगा। सो प्रोविजन क्या, मैं फिर से बोलता हूं, इफ एनी एंटिटी में आपका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, आपके स्पाउस को अगर रेम्यूनरेशन पे किया जा रहा है, रेम्यूनरेशन, कमीशन, फीस कुछ भी नाम से पे किया जा रहा है विदाउट एनी नॉलेज, एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, तो वैसे वाले केसेस में वो रेम्यूनरेशन क्या किया जाएगा, स्पाउस के हाथ में, मतलब जिसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट उसके हाथ में क्लब किया जाएगा। मतलब इस एग्जांपल में 7 लाख रुपीस जो है वो मिसेस ए के हाथ में नहीं, मिस्टर ए के हाथ में क्लब किया जाएगा, क्योंकि उसी ने तो टैक्स प्लानिंग की थी। तो ये 7 लाख में से 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करके रिमेनिंग 6,50,000 मिस्टर ए के हाथ में एज अ इनकम फ्रॉम सैलरी के हिसाब से टैक्सेबल किया जाएगा। सो अगेन रिपीट, सेक्शन 64(1)(2) हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन 64(1)(2) में अगर आपका कोई भी एंटिटी में गाइस अगर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है और उस एंटिटी में से आपको अगर कोई भी सैलरी, कमीशन, फीस, रेम्यूनरेशन कुछ भी नाम से पेमेंट हो रहा है विदाउट एनी नॉलेज, एक्सपीरियंस, एग्जामिनर क्लियर कट आपको एग्जाम में बताएगा कि ये जो रेम्यूनरेशन पे हो रहा है विदाउट एनी नॉलेज, एक्सपीरियंस ऐसा कुछ पे हो रहा है। लेकिन अगर सर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रेम्यूनरेशन पेड इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, रेम्यूनरेशन पेड बिकॉज ऑफ वर्किंग नॉलेज, एक्सपीरियंस, रेम्यूनरेशन पेड शी इज अ हाईली क्वालिफाइड फॉर द जॉब, रेम्यूनरेशन पेड शी इज अ ग्रेजुएट बीकॉम, नॉर्मली उसका ग्रेजुएशन हो चुका और उसको मार्केट में नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, इन दैट केसेस क्लबिंग प्रोविजन आपको अप्लाई नहीं करना है।
लेकिन अगर क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा हुआ है दैट विदाउट एनी नॉलेज एक्सपीरियंस प्रोफेशनल कैपेसिटी अगर रेमिशन पे हुआ है तो वैसे वाले केसेस में आपका रेमिशन जो वो क्या किया जाएगा, क्लब किया जाएगा. नाउ देयर इज वन मोर कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड एज टू वे क्लबिंग. अच्छा, वन मोर थिंग सर, ये जो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट देखा जाएगा दैट इज 20% या उससे ज्यादा, वो असेसी प्लस असेसी के रिलेटिव्स का मिलके देखा जाएगा. बिकॉज यहां पे जानबूझ के असेसी अपना जो स्टेक है वो क्या करेगा, जानबूझ के डाइवर्ट करके रिलेटिव्स के नाम पे ट्रांसफर करेगा. इसके लिए गवर्नमेंट ने पहले ही बोल दिया कि यहां पे हम लोग सब्सटैंशियल इंटरेस्ट देखते वक्त असेसी प्लस असेसी के रिलेटिव्स का मिला के सब्सटैंशियल इंटरेस्ट चेक किया जाएगा. ना तुम लोग पूछोगे सर रिलेटिव्स मतलब कौन कौन हो सकते हैं, तो लॉ मेकर्स बोलते हैं रिलेटिव्स मतलब हस्बैंड के केसेस में वाइफ, वाइफ के केसेस में हस्बैंड हो सकता है. उसके बाद में ब्रदर, सिस्टर, उसके लीनियल असेंडेंट एंड लीनियल डिसेंडेंट ऑफ दैट इंडिविजुअल आएंगे. मतलब मेरे वाले केसेस में अगर बात करो तो मैं, मेरे वाले केसेस में मेरी वाइफ, मेरे ब्रदर सिस्टर, हम दोनों के हस्बैंड वाइफ के बेसिकली दोनों के लीनियल असेंडेंट और लीनियल डिसेंडेंट वो कवर किए जाएंगे. लीनियल असेंडेंट, लीनियल डिसेंडेंट ये दोनों भी असेसी के क्या किए जाएंगे, कवर किए जाएंगे. सर मतलब यहां पे अगर ये रिलेटिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहा हूं मैं, सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं. मतलब इन शॉर्ट यहां पे सिर्फ और सिर्फ बोला है कि रेम्यूनरेशन किसको पे करना है, स्पाउस को. सर अगर मुझे टैक्स प्लानिंग करना है, मैं रेम्यूनरेशन अगर मम्मी डैडी को पे करवाऊं तो मेरा किसी एंटिटी के अंदर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और उससे रेम्यूनरेशन अगर मैं यंगर ब्रदर को पे करवा रहा हूं या तो फिर जो मेरे पेरेंट्स है रिटायर्ड सीनियर सिटीजन्स है उनके नाम पे अगर मैं रेम्यूनरेशन पे करवा रहा हूं, वैसे वाले केसेस में सेक्शन 64(1)(2) एप्लीकेबल नहीं होगा. 64(1)(2) सिर्फ और सिर्फ अगर आपने रेम्यूनरेशन स्पाउस को दिया विदाउट एनी नॉलेज एक्सपीरियंस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, वहां पे सेक्शन 64(1)(2) एप्लीकेबल हो जाएगा. बाकी इफ यू आर पेइंग रेम्यूनरेशन टू एनी अदर रिलेटिव्स अदर देन स्पाउस विदाउट एनी नॉलेज एक्सपीरियंस, वहां पे सेक्शन 64(1)(2) प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा. और एक चीज, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट मतलब बेसिकली जरूरी नहीं है कि थ्रू आउट द ईयर होना चाहिए. एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एक दिन भी अगर आपका उस एंटिटी में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है तो वैसे वाले केसेस में क्या किया जाएगा, क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल किया जाएगा. मतलब ऐसे नहीं है कि सर ईयर एंड के टाइम पे चेक करेंगे कि आपका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है या नहीं है. थ्रू आउट द ईयर कोई भी साल में अगर आपका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है तो वैसे वाले केसेस में क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल किया जाएगा. व्हेन आई से सब्सटैंशियल इंटरेस्ट मतलब कंपनी केसेस में 20% और मोर वोटिंग पावर देखा जाएगा एंड अदर केसेस में 20% और मोर प्रॉफिट का रेशियो देखा जाएगा. नाउ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट देखते वक्त असेसी और असेसी का रिलेटिव्स का देखा जाएगा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. पॉइंट टू बी नोटेड, ईयर एंड ऑफ द ईयर के टाइम पे हम लोग नहीं चेक कर रहे. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अगर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है तो वहां पे क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा. नाउ एक इंटरेस्टिंग केस, सर व्हाट इफ मिसेस एबीसी पार्टनरशिप फर्म में, मिसेस एबीसी पार्टनरशिप फर्म में मिस्टर ए का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 15% है और मिसेस ए का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अज्यूम करो 10% है. मतलब दोनों का मिला के 25% है. दैट इज सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है. सब्सटैंशियल इंटरेस्ट क्योंकि 20% या उससे ज्यादा हो रहा है. मिस्टर ए को रेम्यूनरेशन पे हो रहा है अज्यूम करो 20 लाख रुपीस. मिसेस ए को रेम्यूनरेशन पे हो रहा है अज्यूम करो 12 लाख रुपीस. मिस्टर ए की अदर इनकम जो है, अदर इनकम मींस अदर देन दिस रेम्यूनरेशन अज्यूम करो ये है 50 लाख रुपीस एंड मिसेस ए की अदर इनकम है अज्यूम करो 30 लाख रुपीस. नाउ सवाल ये आ रहा है, रुको एक मिनट, मिस्टर ए के अज्यूम करो अदर इनकम जो है दैट इज 50 लाख रुपीस नहीं, अदर इनकम अज्यूम करो 10 लाख रुपीस है और मिसेस ए के अदर इनकम 30 लाख रुपीस. नाउ सवाल ये आएगा सर दोनों भी अगर 5th स्टैंडर्ड फेल है, सर मिस्टर ए एज वेल एज मिसेस ए दोनों भी 5th स्टैंडर्ड फेल है, तो सर ये बताओ किसका रेम्यूनरेशन किसके हाथ में क्लब करोगे. दोनों भी इज नॉट क्वालिफाई फॉर द पर्पस ऑफ जॉब, तो वैसे वाले केसेस में किसका रेम्यूनरेशन किसके हाथ में क्लब किया जाएगा. तो यहां पे लॉ मेकर्स बोलते हैं इफ बोथ ऑफ देम नॉट हैविंग एनी नॉलेज एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन, वैसे वाले केसेस में ये चेक करो कि किसकी इनकम ज्यादा है. बिकॉज ऑफ कोर्स मैंने जैसे बोला कि हायर इनकम वाला असेसी अपनी इनकम डाइवर्ट करेगा लोअर इनकम असेसी टुवर्ड्स, मतलब हायर इनकम असेसी ना अपने नाम पे ज्यादा इनकम लेगा, वो जानबूझ के अपनी हायर इनकम असेसी क्या करेगा, अपनी इनकम लोअर इनकम स्पाउस के सामने डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा. यहां पे ये देखो कि मिस्टर ए की इनकम 10 लाख रुपीस है, मिसेस ए की इनकम 30 लाख है, सो ही इज हैविंग हायर इनकम मिसेस ए. तो मिसेस ए अज्यूम किया जाएगा कि उन्होंने अपनी इनकम अपना रेम्यूनरेशन को डाइवर्ट किया रहेगा. मतलब इस एग्जांपल में मिसेस ए का खुद का रेम्यूनरेशन 12 लाख तो टैक्सेबल होगा ही, प्लस मिस्टर ए का भी 20 लाख रुपए का रेम्यूनरेशन क्या किया जाएगा, मिसेस ए के हाथ में क्लब किया जाएगा एज पर सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 के हिसाब से. सो अगर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट टुगेदर, तो वैसे वाले केसेस में ये चेक किया जाएगा कि ये कौन से स्पाउस का हैविंग टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग सच इनकम इज हायर. सच इनकम मतलब रेम्यूनरेशन के पहले.
रेमिशन के पहले ये चेक किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा कि कौन से स्पाउस की हायर इनकम है, उसके बेसिस के ऊपर रेमिशन जो वो रिस्पेक्टिव स्पाउस के हाथ में क्या किया जाएगा, क्लब किया जाएगा। दैट वाज योर सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2। और ये चीज यहां पे घुमा फिरा के क्या बोलेंगे कि जब ये रेमिशन ड्रॉ किया जा रहा है वो टाइम पे हस्बैंड वाइफ है, लेकिन जब भी वाइफ जॉब पे लगी थी वो टाइम पे हस्बैंड वाइफ नहीं थे, मतलब एज अ कलीग जॉब पे लगी थी, वो टाइम पे नॉर्मली हस्बैंड वाइफ नहीं थे, लेकिन बाद में सब्सिक्वेंटली शादी होने के बाद रेमिशन ड्रॉ किया जा रहा है। तो ये पहले ज्वाइन हुए थे तभी शादी नहीं हुआ था, ये सब फर्क नहीं पड़ता इस सेक्शन के लिए। तो यहां पे आपको खाली ये चेक करना है कि जब भी रेमिशन ड्रॉ हो रहा है फॉर्म के पास से वो टाइम पर रिलेशनशिप एग्जिस्ट है तो वैसे वाले केसेस में सेक्शन 64(1)(2) एप्लीकेबल होके रहेगा। जब भी जॉब पे लगा था तभी हस्बैंड वाइफ नहीं थे, वो सब प्रोविजन यहां पे मैटर नहीं करते। यहां पे सिंपली ये चेक करना है कि जब भी रेमिशन मिला वो टाइम पे हस्बैंड वाइफ है या नहीं है तो वैसे वाले केसेस में सेक्शन 64(1)(2) एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 64 के सीरीज के अंदर वी हैव सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4, दैट इज स्पाउस को आपने क्या किया है, इनकम ट्रांसफर किया है, मतलब असेट ट्रांसफर किया, सॉरी, कोई भी आपने असेट ट्रांसफर किया, किसको, स्पाउस को, आइदर विदाउट कंसिडरेशन या तो फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, आइदर विदाउट कंसिडरेशन। सी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन मतलब आइदर पूरा फोकट में दिया रहेगा या तो फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में असेट ट्रांसफर किया रहेगा। दोनों भी केसेस में क्लॉज 4 एप्लीकेबल रहेगा। अगेन रिपीट, आइदर आपने असेट ट्रांसफर किया, किसको, स्पाउस को, विदाउट कंसिडरेशन या तो फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। जैसे एग्जांपल, हस्बैंड ने वाइफ को घर गिफ्ट में दिया या तो फिर हस्बैंड ने वाइफ को घर बेचा लेकिन 50 लाख रुपए में बेचा, घर की फेयर मार्केट वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो 90 लाख रुपीस है, 90 लाख का घर 50 लाख रुपीस में बेचा, तो कहने से ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन होगा। और अगर पूरा ही गिफ्ट में दिया है तो वो विदाउट कंसिडरेशन होगा। दोनों भी केसेस में क्लॉज 4 एप्लीकेबल होगा। गवर्नमेंट मतलब कोई भी असेट ट्रांसफर हुआ है स्पाउस को विदाउट और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, देन वो असेट से जो भी इनकम आएगी वो इनकम हम लोग किसके हाथ में क्लब करेंगे, ट्रांसफरर के हाथ में। सो स्पाउस को अगर आपने कोई भी असेट ट्रांसफर किया विदाउट या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, ये सब क्यों आ रहा है, बिकॉज इफ यू रिमेंबर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में गिफ्ट प्रोविजन है। गिफ्ट प्रोविजन में अगर आपने हस्बैंड को या हस्बैंड ने वाइफ को अगर असेट ट्रांसफर किया तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, बिकॉज रिलेटिव्स वाला केस है, मतलब ट्रांसफरर के पॉइंट ऑफ व्यू भी एग्जिम्प्ट होता है एज वेल एज ट्रांसफरी के पॉइंट ऑफ व्यू भी एग्जिम्प्ट होता है। इस लूपहोल का फायदा ढूंढ के ये लोग क्या करते हैं, जानबूझ के इनकम ट्रांसफर करते हैं। जैसे एग्जांपल, मेरे नाम पे घर है, उसके ऊपर कैपिटल गेन आने वाला, अगर मैं घर बेचूंगा तो उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आने वाला है, अज्यूम करो 40 लाख रुपीस। मेरी अदर इनकम 80 लाख रुपीस है, 80 लाख रुपीस प्लस 40 लाख ऐड करूंगा तो 120 लाख रुपीस होगा, मतलब मैं 1 करोड़ के ऊपर इनकम कमा रहा हूं तो मुझे हायर रेट ऑफ सरचार्ज गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, अगर वो 40 लाख रुपीस मैं खुद बेचता हूं तो वो 40 लाख रुपीस का कैपिटल गेन इनकम मेरे हाथ में क्लब किया जाएगा, मतलब मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा। तो मैं स्मार्टली क्या करूंगा, वो असेट को वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दूंगा। वाइफ के नाम पे ट्रांसफर करने की वजह से अभी वाइफ असेट बेचेगी तो वैसे वाले केसेस में जो भी कैपिटल गेन आएगा मैं बताऊंगा गवर्नमेंट को कि वाइफ के हाथ में टैक्सेबल होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। आप अगर कोई भी असेट ट्रांसफर कर रहे हो स्पाउस को विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन या विदाउट कंसिडरेशन, उससे जो भी इनकम आएगी, दैट इनकम में भी कैपिटल गेन इनकम हो सकती है, दैट इनकम में भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस वाली इनकम हो सकती है, दैट इनकम में भी पीजीबीपी वाली इनकम हो सकती है, वो इनकम ट्रांसफरर के हाथ में क्या किया जाएगा, क्लब किया जाएगा। अभी तुम लोग बोलोगे सर मैंने 2 हेड स्किप किए, इनकम फ्रॉम सैलरी एंड दूसरा वाला इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दिस 2 हेड्स आई हैव नॉट टेकन इनटू अकाउंट। व्हाई इज इट सो सर? सैलरी का तो बेटा ऊपर ही हम लोग पढ़ चुके हैं, सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 वाला। हाउस प्रॉपर्टी केसेस में तुम लोग ऐसे मत सोचो सर हाउस प्रॉपर्टी में हम लोग टैक्स प्लानिंग कर लेंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में वी हैव सेक्शन 27, दैट इज डीम ओनर वाला कंसेप्ट। अगर आपने स्पाउस को असेट ट्रांसफर किया विदाउट कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन तो अगेन ट्रांसफरर को सेक्शन 27 के हिसाब से डीम ओनर माना जाता है। तो हाउस प्रॉपर्टी में भी क्लबिंग है बट सेक्शन 64 के हिसाब से नहीं है, वो सेक्शन 27 के हिसाब से एप्लीकेबल होगा। यहां पे सेक्शन के अंदर सिर्फ 3 हेड्स की इनकम कवर की जाएगी, दैट इज पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। इफ रिमेंबर कैपिटल गेन में इनफैक्ट हम लोग ने एक फेमस केस लॉ भी डिस्कस किया था, मंजुला शाह वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स CIT, जहां पे हम लोग कॉस्ट, पीरियड, इंडेक्सेशन सब कुछ प्रीवियस ओनर का कंसीडर करते हैं एज पर सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 के हिसाब से। तो प्रीवियस ओनर क्यों जा रहे हैं, बिकॉज वो इनकम अल्टीमेटली प्रीवियस ओनर के हाथ में क्लब करने वाले हैं। मैंने
रेगुलर लेक्चर्स के अंदर इफ यू रिमेंबर अभिषेक ऐश्वर्या वाला एग्जांपल याद था, अभिषेक ने ऐश्वर्या को असेट ट्रांसफर किया, ऐश्वर्या ने वो असेट सलमान को बेचा, तो ऐश्वर्या जब भी असेट बेचेगी जो भी गेन कंप्यूट किया जाएगा, गेन कंप्यूट करते वक्त ऐश्वर्या के लिए कॉस्ट अभिषेक का लिया जाएगा, फिर उसके बाद में पीरियड ऑफ होल्डिंग इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी अभिषेक से दिया जाएगा बिकॉज ऑफ दैट केस लॉ सीआईटी वर्सेस मंजुला शाह। इनकम भले हम लोग ऐश्वर्या के हाथ में कंप्यूट कर रहे हैं बट बिकॉज ऑफ दिस सेक्शन वो इनकम जो वो इनकम किसके हाथ में क्लब की जाएगी, ट्रांसफरर दैट इज अभिषेक के हाथ में क्लब की जाएगी। ठीक है, नाउ कुछ नोट्स। द अबव प्रोविजन इज एप्लीकेबल, जैसे एग्जांपल यहाँ पे स्पाउस ने एसेट ट्रांसफर किया था अदर स्पाउस को, तो वैसे वाले केसेस में इनकम क्लब होगा प्रोवाइडेड जब भी असेट ट्रांसफर हुआ है वो टाइम पे रिलेशनशिप एग्जिस्ट होना चाहिए, एज वेल एज जब भी उस असेट से इनकम अक्रू हो रही है तभी भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट होना चाहिए। मतलब लॉ मेकर्स यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि बेसिकली जब भी आपने असेट्स ट्रांसफर किया स्पाउस को वो टाइम पे भी आपका हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप होना चाहिए, एंड जब भी उस असेट से इनकम अक्रू होगी वो टाइम पे भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट होना चाहिए। मतलब दोनों टाइम पे रिलेशनशिप एग्जिस्ट होना चाहिए, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ असेट as well as at the time of accrual of income, at the time of generating of income। दोनों में से कोई भी एक टाइम पे अगर रिलेशनशिप नहीं है तो वैसे वाले केस में क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे एग्जांपल हस्बैंड ने, मतलब हस्बैंड नहीं बोल सकता, फियांसे को आपने असेट ट्रांसफर किया, फियांसे को अभी तक शादी नहीं हुई है, फियांसे को असेट ट्रांसफर किया और उसके बाद में शादी हुई, शादी होने के बाद इनकम जनरेट हो रही है, तो क्या वो इनकम क्लबिंग की जाएगी? आंसर इज नो, बिकॉज जब ट्रांसफर हुआ था वो टाइम पे रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं था, फियांसे थे सिर्फ, तो वैसे वाले केसेस में हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं है, इस रीजन के से क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकंड, सर जब भी असेट ट्रांसफर किया तभी हस्बैंड वाइफ थे लेकिन बाद में डिवोर्स हुआ या तो फिर बाद में म्यूचुअली सेपरेटेड हो गए, तो वैसे वाले केसेस में क्या क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे? आंसर इज नो, बिकॉज जब भी असेट ट्रांसफर किया था दैट टाइम रिलेशनशिप वाज एग्जिस्ट, but at the time of generating of income relationship is not exist, therefore clubbing provision is not applicable। so again repeat, दोनों टाइम पे रिलेशनशिप होना चाहिए, at the time of transfer of income, sorry transfer of asset as well as at the time of generating of income। same उसी से connecting note 2 है, clubbing provision is not applicable if the asset transfer in connection with agreement to leave apart। मतलब म्यूचुअली अगर हस्बैंड वाइफ सेपरेटेड हो चुके हैं तो म्यूचुअली सेपरेटेड हुए, एग्रीमेंट लीव अपार्ट है, तो वैसे वाले केसेस में अगेन हस्बैंड वाइफ साथ में नहीं रह रहे, म्यूचुअली लीव अपार्ट है, तो वैसे वाले केसेस में क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। हाउस प्रॉपर्टी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन ऑफ दिस सेक्शन ओनली, सेक्शन 27 दैट इज डी मोनर करके सेक्शन है। अगर आपने असेट ट्रांसफर किया स्पाउस को, मतलब हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया स्पाउस को या तो फिर माइनर चाइल्ड को, एक्सेप्ट माइनर मैरिड डॉटर, माइनर मैरिड डॉटर के केसेस में नॉर्मली सेक्शन 27 एप्लीकेबल नहीं होता, सेक्शन 27 में सिर्फ माइनर चाइल्ड कवर किया गया है। तो अगर असेट ट्रांसफर किया स्पाउस को या तो फिर माइनर चाइल्ड अदर देन माइनर मैरिड डॉटर, तो ट्रांसफरर को ही क्या माना जाएगा? डी मोनर माना जाएगा बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 27। मतलब इनडायरेक्टली यहां पे भी क्लबिंग है बट नॉट बिकॉज ऑफ सेक्शन 64 बट बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 27 के हिसाब से क्लबिंग एप्लीकेबल होगा। नाउ एग्जांपल लेते हैं, अज्यूम करो सर मिस्टर ए ने मिसेस ए को 9% डिबेंचर ट्रांसफर किया जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपीस है। 10 लाख का 9% मतलब 90,000 रुपीस का डिबेंचर इंटरेस्ट मिला है मिसेस ए को। दिस डिबेंचर इंटरेस्ट शैल बी क्लब इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर ओनली, दैट इज मिस्टर ए, बिकॉज 9% डिबेंचर आपने गिफ्ट के फॉर्म पे ट्रांसफर किए, दैट इज विदाउट कंसिडरेशन असेट ट्रांसफर किया, वहां से जो भी इनकम आ रही है दैट इनकम शैल बी क्लब इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर ओनली। तो ये इनकम मिस्टर ए के हाथ में कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। नाउ 90,000 ये वाइफ ने फिर से कहां ना कहां इन्वेस्ट किया, अज्यूम करो बैंक में एफडी बना और बैंक एफडी से उनको 5,000 रुपीस का इंटरेस्ट मिल रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज वेदर ऑन दिस 5,000 आल्सो क्लबिंग प्रोविजन इज एप्लीकेबल। तो लॉ मेकर बोलते नहीं, अगर सेकेंड जनरेटिंग इनकम है, मतलब क्लबिंग इनकम को इन्वेस्ट करके एडिशनल इनकम कमा रहे हो, तो फॉर दैट सेकेंड जनरेटिंग इनकम एक्रीशन ऑफ इनकम क्लबिंग प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल। मतलब क्लबिंग इनकम को फर्दर इन्वेस्ट करके कोई एडिशनल इनकम कमाई होगी, सो ऑन दैट एडिशनल इनकम क्लबिंग प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल। सो दैट इज अ नोट नंबर 4, इफ क्लबिंग इनकम इज री इन्वेस्टेड एक्रीशन ऑफ इनकम दैट सेकेंड जनरेशन इनकम के लिए क्लबिंग प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल। फिर अगर मैंने वाइफ को सपोज हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए कुछ खर्चा के लिए पैसे दिए, उसमें से उसने कुछ अमाउंट स्पेंड किया हाउस होल्ड खर्चे के लिए और बाकी का पैसा उसने सेविंग करके कहां ना कहां इन्वेस्ट किया है और वहां से कुछ इनकम आ रही है। मैंने वाइफ को डोमेस्टिक खर्चे के लिए, मतलब काम वाली का पगार, घर का राशन, वो सब के लिए अज्यूम करो मैंने 50,000 रुपीज दिया मंथली, उसमें से उसने स्पेंड किया 30,000, 20,000 सेव करके उसने कहां ना कहां इन्वेस्ट किया है। फॉर दैट इन्वेस्टमेंट दैट इज कॉल्ड एज पिन मनी,
हाउस होल्ड सेविंग में से कुछ पैसा सेव किया हुआ है, फॉर दैट अमाउंट क्लबिंग प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल। मतलब वो 20,000 इन्वेस्ट करके वाइफ जो भी इनकम कमाएगी वो इनकम वाइफ के हाथ में टैक्सेबल होगा, वहां पे क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। That was all about guys section 64 subsection 1 clause 4. Similar provision we have for section 64 subsection 1 clause 6, that is asset transfer to son's wife. मतलब मेरे डैडी ने अगर असेट मेरी वाइफ को ट्रांसफर किया, दैट इज सन्स वाइफ को असेट ट्रांसफर किया, तो वैसे वाले केसेस में भी सेम प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। मतलब यहां पे भी जब भी आपका असेट ट्रांसफर हो रहा है वो टाइम पर रिलेशनशिप होना चाहिए, एज वेल एज एट ए टाइम ऑफ जनरेटिंग ऑफ इनकम रिलेशनशिप होना चाहिए। मतलब अज्यूम करो सर मेरा शादी नहीं हुआ है, मैंने गर्लफ्रेंड घर पे दिखाने के लिए लेके गया, घर पे गर्लफ्रेंड दिखाने के लिए लेके गया, तो वैसे वाले केसेस में डैडी ने खुश होकर इमीडिएटली प्रॉपर्टी जो है वो गर्लफ्रेंड के नाम पे ट्रांसफर कर दी। अभी तक शादी नहीं हुआ है, सिर्फ गर्लफ्रेंड को असेट ट्रांसफर किया है। फ्यूचर में अज्यूम करो उसी लड़की के साथ शादी भी हुई, तो जब इनकम अक्रू हो रही है वो टाइम पे हम दोनों का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है। मतलब वो टाइम पे नॉर्मली सन्स वाइफ और मतलब होता है फादर इन लॉ का रिलेशनशिप है, लेकिन जब असेट ट्रांसफर हुआ था वो टाइम पर रिलेशनशिप था नहीं, तो क्या वैसे वाले केसेस में क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल होगा? आंसर इज नो। वो इनकम वाइफ के हाथ में टैक्सेबल होगी, ना कि फादर इन लॉ के हाथ में टैक्सेबल होगी। मतलब इन शॉर्ट मैंने वो जो पॉइंट बोला था प्रीवियस इसमें थियरी में, एट ए टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ असेट एज वेल एज एट ए टाइम ऑफ जनरेटिंग ऑफ इनकम, दोनों भी टाइम पे आपका रिलेशनशिप क्या होना चाहिए? एग्जिस्ट होना चाहिए। तो अगर कोई भी असेट ट्रांसफर करे, इधर मेरी मम्मी मेरे वाइफ को कुछ असेट ट्रांसफर कर रही है या मेरे डैडी अगर वाइफ को असेट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसमें से जो भी इनकम आएगी वो इनकम बाय डिफॉल्ट मम्मी या डैडी जो भी ट्रांसफरर है उसी के हाथ में क्या किया जाएगा? क्लब किया जाएगा। ठीक है। सेम वे सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 एंड क्लॉज 8, यहां पे आप असेट स्मार्टली स्पाउस को नहीं किसी ऐसे पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हो फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस, या फिर किसी ऐसे पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हो फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ। मतलब क्लॉज 4 और क्लॉज 6 ये कभी एप्लीकेबल होगा अगर डायरेक्टली आपने असेट ट्रांसफर किया स्पाउस या सन्स वाइफ को। क्लॉज 7 और क्लॉज 8 बोलता है कि अगर आपने इनडायरेक्टली असेट ट्रांसफर किया है, किसी ऐसे पर्सन को असेट ट्रांसफर किया फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस या सन्स वाइफ, तो भी क्या किया जाएगा? इनकम ट्रांसफरर के हाथ में क्लब किया जाएगा। मतलब आप डायरेक्टली असेट ट्रांसफर करो या इनडायरेक्टली किसी पर्सन के थ्रू असेट ट्रांसफर करो, दोनों भी केसेस में क्या किया जाएगा? क्लबिंग एप्लीकेबल किया जाएगा। ठीक है। देन वी हैव अ कॉमन नोट फॉर ऑल द अबव 4 सेक्शंस। आपको एग्जाम टाइम पे भी रिवाइज करते वक्त ये चारों सेक्शन साथ में ही पढ़ने। सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 दैट इज ट्रांसफर ऑफ असेट टू स्पाउस, क्लॉज 6 ट्रांसफर ऑफ असेट टू सन्स वाइफ, क्लॉज 7 ट्रांसफर ऑफ असेट टू एनी पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस, एंड क्लॉज 8 ट्रांसफर ऑफ एनी असेट टू एनी पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ। ये सब केसेस में ऑफ कोर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट होना चाहिए at a time of transfer of income as well as at a time of accrual of income also. In all the cases जो भी सेकेंड जनरेशन ऑफ इनकम है क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। सेकेंड जनरेशन इनकम मतलब जैसे मैंने बोला था क्लबिंग इनकम को फर्दर इन्वेस्ट किया और वहां से जो एडिशनल इनकम आ रही है वो एडिशनल इनकम के ऊपर ये क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। फिर नेक्स्ट वाला क्लबिंग प्रोविजन में लॉस भी आएगा। मतलब अगर आपने बिजनेस के लिए पैसे दिए, बिजनेस के लिए वाइफ को पैसे दिए, वाइफ ने वो पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट किए और वहां पे लॉस हो गया, तो इवन लॉस के केसेस में भी क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल होता है। गवर्नमेंट इतना सेल्फिश नहीं है कि सिर्फ इनकम के केसेस में प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, इवन इन केस ऑफ लॉस आल्सो दिस क्लबिंग प्रोविजन इज एप्लीकेबल। देन अगर फॉर्म ऑफ असेट चेंज हुआ है तो भी वैसे वाले केसेस में क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब वेदर असेट ट्रांसफर इज कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म है, इनकम डिराइव फ्रॉम सच अदर फॉर्म आल्सो क्या किया जाएगा? क्लब किया जाएगा। मतलब अज्यूम करो मैंने वाइफ को गोल्ड बिस्किट ट्रांसफर किए, वाइफ ने उस गोल्ड बिस्किट से ज्वेलरी बना और वाइफ ने ज्वेलरी बेचा है, तो ज्वेलरी बेच के कैपिटल गेन आया, तो वो कैपिटल गेन भी बाय डिफॉल्ट ट्रांसफरर दैट इज मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा। मैं गवर्नमेंट को ऐसे नहीं बोल सकता कि मैंने तो बिस्किट ट्रांसफर किए थे, अरे बिस्किट से ही तो ज्वेलरी बनी, गोल्ड बिस्किट से ही ज्वेलरी बनी। मतलब इवन दो फॉर्म ऑफ असेट चेंज हुआ है, कन्वर्ट किया है, तो भी वैसे वाले केसेस में क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट, अगर बिजनेस के लिए पैसे दिए, तो बिजनेस के केसेस में जैसे एग्जांपल मैंने वाइफ को बिजनेस के लिए पैसे दिए, वाइफ ने एक नया बिजनेस चालू किया, उस बिजनेस में टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट 10 लाख की थी, उस 10 लाख में से 6 लाख रुपीस मैंने कंट्रीब्यूट किया, 4 लाख रुपीस वाइफ ने खुद का ओन कंट्रीब्यूशन डाला हुआ है। फिर से बोलता हूं, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस 10 लाख रुपीस, इसमें वाइफ का खुद का कंट्रीब्यूशन 4 लाख था, मैंने 6 लाख रुपीस गिफ्ट में दिया है, और इस बिजनेस से उसने 23-24 में अज्यूम करो 2 लाख का प्रॉफिट कमाया। अब बोलो ये 2 लाख का जो प्रॉफिट कमाया ये सिर्फ और सिर्फ खुद के ओन कंट्रीब्यूशन 4 लाख से नहीं कमाया, टोटल कंट्रीब्यूशन 10 लाख से कमाया। तो ये 2 लाख रुपीस का जो प्रॉफिट है वो क्या किया जाएगा? कैपिटल रेशियो में स्प्लिट किया जाएगा। 6:4 जो रेशियो आएगा दैट इज 3:2 भी बोल सकते हो, वो रेशियो के अंदर क्या किया जाएगा?
2 लाख रुपीस के प्रॉफिट को स्प्लिट करके रिस्पेक्टिव असेसी के हाथ में पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल किया जाएगा। मतलब जो भी उनका प्रोपोर्शनेटली प्रॉफिट है वो क्या किया जाएगा, कैपिटल रेशियो के अंदर स्प्लिट किया जाएगा। लेकिन यहां पे कंडीशन ये है कि गिफ्टेड मनी आपका इंक्लूड होना चाहिए इन ओपनिंग कैपिटल। मतलब 1 अप्रैल को वो ओपनिंग कैपिटल में आपका गिफ्टेड अमाउंट इंक्लूड होना चाहिए। मैंने जो 6 लाख रुपीस दिया था वो 1 अप्रैल को है तो उस साल में क्लबिंग एप्लीकेबल होगा। अभी सर व्हाट इफ अगर मैंने इन बिटवीन द ईयर दिया है, जैसे मैंने 22-23 में 1 नवंबर को पैसा दिया, 1 नवंबर को गिफ्ट दिया है, 1 नवंबर को गिफ्ट दिया है, तो सर उस साल के लिए क्लबिंग एप्लीकेबल नहीं होगा बिकॉज दैट इज नॉट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो उस साल का जो भी प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ वाइफ पे हाथ में टैक्सेबल होगा। लेकिन कहना है 22-23 में 31 मार्च 23 का जो क्लोजिंग है वो नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 23 का ओपनिंग बन जाएगा। नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग है मतलब नेक्स्ट ईयर के इसमें क्या किया जाएगा, वो अमाउंट रेशियो के हिसाब से क्या किया जाएगा, प्रॉफिट में स्प्लिट किया जाएगा। मतलब इन शॉर्ट आप अगर सोच रहे हो कि सर हम लोग बीच में ही इन बिटवीन द ईयर फाइनेंशियल ईयर में कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, क्लबिंग से बच जाएंगे, सिर्फ उस साल के लिए बच जाओगे। नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स ऑब्वियसली आपको क्या किया जाएगा, क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल किया जाएगा। इसका चाहिए तो एक एग्जांपल लेते हैं। अज्यूम करो मिस्टर ए गिफ्टेड 6 लाख रुपीस टू मिसेस ए, invested in business on 15 May 22, total capital 10 lakh rupees। प्रीवियस ईयर 22-23 का प्रॉफिट कमाया वाइफ ने, असुम करो प्रॉफिट कमाया दैट इज नथिंग बट 2 लाख रुपीस वही। तो ये 2 लाख रुपीस किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? तो लॉ मेकर्स बोलते हैं पहले तो क्या ये फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर है? नहीं। तो उस साल का प्रॉफिट जो है वो उस साल का प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ मिसेस ए के हाथ में क्या किया जाएगा, टैक्सेबल किया जाएगा। सो 2 लाख रुपीस का पूरा प्रॉफिट जो है ये मिसेस ए के हाथ में टैक्सेबल किया जाएगा। ठीक है, कौन साइड में? वही पीजीबीपी। अभी मैं क्लोजिंग कैपिटल बात करूं, क्लोजिंग कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 23 मिस्टर ए का टोटल कैपिटल था 6 लाख, वही 6 लाख रुपीस रहेगा। मिसेस ए का बिजनेस में लगा हुआ कैपिटल 10 लाख में से 6 लाख अगर हस्बैंड का है तो 4 लाख वाइफ का रहेगा। 4 लाख रुपया वाइफ का कैपिटल था प्लस करंट ईयर का प्रॉफिट 2 लाख रुपीस, मतलब पूरा 6 लाख रुपीस। 6 लाख रुपीस ये आपका क्लोजिंग कैपिटल, यही आपका नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा, ओपनिंग कैपिटल बन जाएगा। ओपनिंग कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 23। अज्यूम करो 23-24 में बिजनेस से प्रॉफिट कमाया, कितना रुपीस का प्रॉफिट कमाया? 3,60,000 का प्रॉफिट कमाया। नाउ कैन आई से 23-24 में ओपनिंग में हस्बैंड का कैपिटल इन्वॉल्व है तो नेक्स्ट ईयर में क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। 3,60,000 के प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा आपको, मिस्टर ए एंड मिसेस ए इनके कैपिटल रेशियो में स्प्लिट करना पड़ेगा। व्हाट इज द कैपिटल रेशियो? 6:6 मतलब 1:1। 1:1 मतलब 1,80,000 का प्रॉफिट मिस्टर ए के हाथ में पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा एंड रिमेनिंग 1,80,000 का प्रॉफिट मिसेस ए के हाथ में पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा। सर अगर ये 3,60,000 प्रॉफिट ना होके लॉस होता तो भी 1,80,000 का लॉस का बेनिफिट पीजीबीपी का मिस्टर ए को मिलता, रिमेनिंग 1,80,000 पीजीबीपी लॉस का बेनिफिट मिसेस ए को मिलता। बिकॉज आज वी ऑलरेडी डिस्कस क्लबिंग प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ इनकम में नहीं, इवन लॉस के केसेस में भी क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल होकर रहेगा। ठीक है, सो उसी का यहाँ पे फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, खाली ये याद रखो कि फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर में जितना कैपिटल है उसी कैपिटल रेशियो के हिसाब से क्या किया जाएगा, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को स्प्लिट किया जाएगा। ठीक है, फिर ये लास्ट वाला तुम लोगों को नोट ऑलरेडी बता चुका मैं, सेकंड जनरेशन ऑफ इनकम है दैट इज एक्विजिशन ऑफ इनकम, वहां पे क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते। क्रॉस गिफ्ट है, क्रॉस गिफ्ट जैसे कि एग्जांपल अगर ए ने अज्यूम करो बी को, मिसेस बी को, मतलब उसके ब्रदर की वाइफ मिसेस बी, उसको 10 लाख रुपीस का कैश गिफ्ट दिया एंड मिस्टर बी ने उसके ब्रदर की वाइफ मिसेस ए को 9% डिबेंचर्स 8 लाख रुपीस के ट्रांसफर किए। मतलब ऑफ कोर्स मिस्टर ए सोच रहा है कि अगर मैं डायरेक्टली अपने वाइफ को गिफ्ट दूं तो वहां पे क्लबिंग आएगा ट्रांसफर टू स्पाउस के हिसाब से। मिस्टर बी सोच रहा है कि अगर मैं अपने वाइफ को डायरेक्टली अगर ट्रांसफर करूं तो वहां पे भी क्लबिंग का प्रोविजन है। तो दोनों भाई ने डिसाइड किया कि हम लोग क्रॉस ट्रांसफर करेंगे। मतलब इन शॉर्ट मिस्टर ए अपने भाभी को 10 लाख रुपीस का कैश दे रहा है एंड मिस्टर बी अपने ब्रदर की वाइफ को मिसेस ए को 9% डिबेंचर दे रहा है 8 लाख रुपए के। लॉ मेकर्स यहाँ पे ये बोलते हैं कि ऐसा कोई अगर हम लोग को क्रॉस गिफ्ट दिखा,
ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्क्रूटिनी, असेसमेंट करते वक्त। तो इसमें से जो भी मैचिंग अमाउंट है वो मैचिंग अमाउंट के ऊपर हम लोग क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई करेंगे। 8 लाख और 10 लाख रुपीस में कॉमन अमाउंट, मैचिंग अमाउंट कितना रुपीस होगा, 8 लाख, तो 8 लाख रुपीस तक के वैल्यू के ऊपर क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। ये डिबेंचर के ऊपर 9% के हिसाब से 8 लाख इंटू 9%, 72,000 रुपीस मिस्टर ए के हाथ में क्लब होगा। 10 लाख में से मैचिंग अमाउंट 8 लाख था, तो 8 लाख का 7%, 56,000 रुपीस का एफडी इंटरेस्ट मिस्टर बी के हाथ में क्लब किया जाएगा। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ क्रॉस गिफ्ट। मतलब क्रॉस गिफ्ट के केसेस में अगर सिमिलर अमाउंट है, सिमिलर अमाउंट मैचिंग अमाउंट जितना भी होगा वो मैचिंग अमाउंट के ऊपर क्या किया जाएगा, क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई किया जाएगा। वन लास्ट प्रोविजन सेक्शन 64 सबसेक्शन 1A, दैट इज माइनर चाइल्ड वाला। माइनर चाइल्ड के केसेस में भी क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, लेकिन उसमें 2 एक्सेप्शन हो सकते हैं। अगर माइनर ने इनकम खुद के स्किल, खुद के टैलेंट या मैनुअल वर्क से इनकम कमाई है, या तो फिर माइनर एक फिजिकली या मेंटली हैंडीकैप चाइल्ड है, तो उस केसेस में इनकम ऑफ माइनर पेरेंट्स के हाथ में क्लब नहीं होगा। मैं फिर से बोलता हूं, 2 एक्सेप्शन। अगर माइनर ने इनकम खुद के स्किल एंड टैलेंट से या मैनुअल वर्क करके कमाई है, या तो फिर माइनर फिजिकली या मेंटली हैंडीकैप है, तो वहां पे क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। लेकिन इन ऑल अदर केसेस, जैसे पेरेंट्स ने माइनर के नाम पे एफडी बना के रखा है, पेरेंट्स ने माइनर के नाम पे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ, या किधर और जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहां से इनकम आ रही है, तो वो इनकम डेफिनेटली पेरेंट्स के हाथ में क्लब होगी। सब पेरेंट्स में किसके हाथ में क्लब होगी, मम्मी या डैडी। तो लॉ मेकर्स बोलते हैं जो भी पेरेंट मम्मी या डैडी में से जिसकी भी हायर इनकम होगी, वो हायर इनकम के अंदर वो इनकम को क्लब किया जाएगा। ये सेक्शन 64(1) का प्रोविजन है। लेकिन क्लब करते वक्त आपको 1500 रुपए का, 1500 रुपीज का एक स्टैंडर्डेशन दिया जाएगा। मतलब 1500 रुपए तक अगर माइनर चिल्ड्रन का इनकम है तो वो फुली एग्जेम्प्ट होगा। 1500 से ज्यादा है तो 1500 तक एग्जेम्प्ट, रिमेनिंग अमाउंट टैक्सेबल किया जाएगा। लेकिन अगर आप 115 BAC में गए, दैट इज डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में गए, तो वहां पे इवन दैट 1500 रुपीज का भी आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। और एक चीज, सैलरी, इफ यू रिमेंबर, सैलरी में हम लोग हमेशा हम दो हमारे दो, मतलब मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस का लिमिट लगाते हैं। बट सेक्शन 64 सबसेक्शन 1A के अंदर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस का लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पे जितने भी असेसी के खुद के बच्चे हैं, वो खुद के बच्चे के हिसाब से क्या किया जाएगा, 1500 रुपीज का एग्जेम्पशन मिलेगा। और एक चीज, जैसे एग्जांपल अज्यूम करो असेसी के 3 बच्चे हैं, A, B, C, तीनों माइनर बच्चे हैं। A बच्चे का इनकम अज्यूम करो 1000 रुपीज है, B बच्चे का इनकम 2000 है, C बच्चे का इनकम 3000 है, और स्किल एंड टैलेंट से नहीं, ना हैंडी का भी नहीं है, तो कैसे ये इनकम क्लब किया जाएगा। A का क्लब करते वक्त 1500 से कम है तो पूरा 1000 एग्जेम्प्ट होगा, कुछ भी क्लब नहीं होगा। B वाले केसेस में 1500 एग्जेम्प्ट होकर रिमेनिंग 500 क्लब किया जाएगा। C वाले केसेस में 1500 एग्जेम्प्ट करके रिमेनिंग 1500 क्लब किया जाएगा। अभी तुम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकता सर A का 1500 में से 500 तो अनएग्जॉस्टेड अमाउंट है, वो अनएग्जॉस्टेड अमाउंट हम लोग B और C के सामने 250 वहां पे यूज कर लेते हैं। वैसा नहीं होगा, हर बच्चे को इंडिपेंडेंटली 1500 रुपीज का एग्जेम्पशन मिलेगा। उतना एग्जेम करने के बाद रिमेनिंग अमाउंट जो है वो पेरेंट्स के हाथ में क्लब किया जाएगा। लेकिन सर अगर माइनर बच्चे ने अगर कैजुअल इनकम कमाई, तो विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी, स्किल, टैलेंट, विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी से या ड्रीम 11 से पैसे कमाए, क्या वैसे वाले केसेस में पेरेंट ऐसे बोल सकते हैं वो तो माइनर बच्चे का स्किल एंड टैलेंट है? आंसर इज नो। वैसे वाले केसेस में भी इनकम जो पेरेंट्स के हाथ में क्लब किया जाएगा। बट कैन आई से दैट इज अ विनिंग इनकम, दैट इज अ कैजुअल इनकम है। कैजुअल इनकम है मतलब वो इनकम पेरेंट्स के हाथ में फ्लैट 30% से टैक्सेबल हो रही है, तो वहां पे आपको 1500 रुपीज का कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। और एक चीज सर, अगर माइनर के बच्चे ही नहीं रहेंगे, तो बच्चे नहीं है तो वैसे वाले केसेस में इनकम द पेरेंट, जिसका मतलब पेरेंट नहीं है, सॉरी माइनर के बच्चे कैसे बोल सकते हो, सॉरी माइनर के अगर पेरेंट्स नहीं है, माइनर के अगर पेरेंट्स नहीं है तो वैसे वाले केसेस में इनकम जो है वो इनकम किसके हाथ में क्लब की जाएगी, दैट इज द रिबट, जो लीगल गार्डियन है वो लीगल गार्डियन के हाथ में क्लब किया जाएगा। और अगर माइनर के केसेस में अगर डिवोर्स हुआ है पेरेंट्स का, तो जिस पेरेंट के पास उस माइनर बच्चे का कस्टडी है उस पेरेंट के हाथ में इनकम टैक्सेबल की जाएगी। सो ऑल दिस वाज सेक्शन 64 सबसेक्शन 1A, दैट इज माइनर चाइल्ड के बारे में। सो फिर से बोलता हूं, सेक्शन वाइज अगर बात करो तो सेक्शन 60 था गाइस अपना, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। सेक्शन 61 ट्रांसफर ऑफ असेट, बट वो ट्रांसफर रिवोकेबल ट्रांसफर है सेक्शन 63 के हिसाब से। सेक्शन 62 एक्सेप्शन था रिवोकेबल ट्रांसफर का, अगर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बेनिफिशियरी अगर आपने असेट ट्रांसफर किया रहेगा, तो वैसे वाले केसेस में टिल द लाइफ टाइम ऑफ बेनिफिशियरी अगर असेट रीट्रांसफर नहीं हो रहा है तो वो ट्रांसफर को हम लोग इरिवोकेबल मानेंगे। फिर सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 था रेम्यूनरेशन टू स्पाउस वाला। स्पाउस को अगर रेम्यूनरेशन पे किया जा रहा है जहां पे उस स्पाउस को कोई भी प्रोफेशनल नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है तो रेम्यूनरेशन क्लब किया जाएगा। फिर क्लॉज 4 था सेक्शन 64(1)(4) ट्रांसफर ऑफ असेट टू स्पाउस, उससे जो भी इनकम आ रही है वो ट्रांसफरर के हाथ में क्लब की जाएगी। क्लॉज 6 था ट्रांसफर ऑफ असेट टू सन्स वाइफ,
उससे जो भी इनकम आ रही है अगेन ट्रांसफरर के हाथ में टैक्सेबल होगी। क्लॉज 7 एंड क्लॉज 8 दैट इज अबाउट ट्रांसफर ऑफ असेट टू एनी पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस या तो फिर सन्स वाइफ, वहां पे भी इनकम जो है ट्रांसफरर के हाथ में क्लब की जाएगी। एंड लास्ट वाला सेक्शन 64 सबसेक्शन 1A था, दैट इज अबाउट इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। सो ये सेक्शन 64 वाला सीरीज और सेक्शन 60 ये सेक्शन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। चलो सेक्शन के ऊपर डिस्कशन हो गया, थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं। मैंने थोड़े बहुत आरटीपी में से क्वेश्चंस या पुराने एग्जामिनेशन में से क्वेश्चन उठाया है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 May 23 एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था। मिस्टर चमन who is 50 years old and his wife Mrs. Chaman who is 48 years old furnishes the following income. All the amount of income, gain, losses are computed as per the provisions of Income Tax Act. मतलब इनकम ऑलरेडी कंप्यूट करके दिया है, तो अगर कोई रेंट है तो रेंट में आपको 30% का स्टैंडर्ड माइनस करने की जरूरत नहीं है। कोई सैलरी इनकम है तो सैलरी इनकम में 50,000 का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन देने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी इनकम आपको लॉ मेकर्स ने कंप्यूट करके दिया है क्वेश्चन में, एग्जामिनर ने। फर्स्ट, मिस्टर चमन सैलरी इनकम 11 लाख रुपीस, तो चमन की सैलरी चमन के हाथ में टैक्सेबल होगी। मिसेस चमन इनकम फ्रॉम कथक परफॉर्मेंस 2,50,000, ये मिसेस चमन की इनकम है तो उन्हीं के हाथ में टैक्सेबल किया जाएगा। साथ में मैं नीचे लिखते भी जाता हूं, मिस्टर चमन पूछा क्या अपने को, कंप्यूट द टोटल इनकम इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एंड मिसेस चमन एंड देयर माइनर चिल्ड्रन। ठीक है, पहले मिस्टर चमन, मिसेस चमन, माइनर बच्चे कौन है वो देख लेंगे आगे, फिलहाल के लिए तो मुझे ये दो असेसी दिख रहे हैं। ठीक है, मिस्टर चमन एंड मिसेस चमन। चलो सबसे पहले सैलरी इनकम, सैलरी इनकम नो नीड टू गिव 50,000 का स्टैंडर्ड एज इट इज ऑलरेडी कंप्यूटेड। 11 लाख रुपीस मिस्टर चमन के हाथ में टैक्सेबल होगा। देन सेकेंड जो है दैट इज अ बट इनकम फ्रॉम कथक परफॉर्मेंस 2,50,000, इनकम फ्रॉम परफॉर्मेंस 2,50,000। नेक्स्ट, मिसेस चमन अर्न लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5,50,000 फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, तो 5,50,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिसेस चमन के हाथ में टैक्सेबल किया जाएगा। मिसेस चमन गिफ्टेड 2 लाख रुपीस टू मिस्टर चमन आउट ऑफ हर स्त्री धन ऑन 1 अप्रैल 23। मिसेस चमन के खुद के कुछ पर्सनल इन्वेस्टमेंट थे, उसमें से उन्होंने 1 अप्रैल 23 को मिस्टर चमन को गिफ्ट दिया है। मिसेस चमन ने फ्रॉम हर पर्सनल सेविंग्स मिस्टर चमन को 2 लाख रुपीस का गिफ्ट दिया है। चमन ने वो पैसे इन्वेस्ट किए एंड एंटायर अमाउंट इन स्टॉक एक्सचेंज सफर्ड अ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑफ रुपीज 5,10,000। चमन ने वो पैसे क्या किया, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ 5,10,000 रुपीज का। अभी सर पहले तो यहाँ पे ये डाउट आएगा, सर 2 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट होकर 5,10,000 रुपीज का लॉस आ रहा है, क्या फिर वो 3,10,000 रुपए जो इन्वेस्टमेंट मिस्टर चमन का होगा खुद का, या 2 लाख रुपए के जो गिफ्ट मिला था वही इन्वेस्ट करके 5,10,000 का लॉस होगा? दोनों अजम्पशन अपने आप में करेक्ट है। आप ये अज्यूम कर सकते हो कि 2 लाख रुपीस का ही पैसा इन्वेस्ट करके 5,10,000 रुपीज का लॉस हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा है कि एंटायर अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट, तो वैसे वाले केसेस में आप ये अज्यूम कर सकते हो कि 2 लाख रुपीस ही इन्वेस्ट करके 5,10,000 रुपीज का लॉस होगा। या तो फिर एक अजम्पशन ये भी हो सकता है कि खुद का 3,10,000 एंड वाइफ के पीस से मिला हुआ 2 लाख रुपीस इन्वेस्ट करके 5,10,000 रुपीज का लॉस होगा। दोनों अजम्पशन अपने आप में करेक्ट आंसर अजम्पशन हो सकते हैं। हम लोग ये अजम्पशन लेके चलेंगे कि 2 लाख रुपीस का जो गिफ्ट मिला था वही अमाउंट इन्वेस्ट किया और 5,10,000 रुपीस का लॉस हुआ। अभी सवाल ये आ रहा है सर ये कौन सा लॉस है? आंसर इज ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस किसको बेनिफिट मिलेगा सर, मिस्टर या मिसेस चमन को? तो आप मुझे बोलो, शेयर्स ट्रांसफर किए थे, उसने स्त्रीधन से पैसे दिए थे 2 लाख रुपीस और उसने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किए थे। चमन ने इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन चमन के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए खुद के पैसे नहीं, वाइफ के पास से जो मिले थे गिफ्ट के फॉर्म पे वही इन्वेस्ट किया है। तो इधर से जो इनकम या लॉस आएगा वो मिसेस चमन के हाथ में टैक्सेबल किया जाएगा। तो ये 5,10,000 का पूरा लॉस का बेनिफिट जो मिस्टर चमन को नहीं मिसेस चमन को दिया जाएगा। नाउ मिसेस चमन के पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5,50,000 है और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 5,10,000 है। तो याद करो
लॉन्ग टर्म का लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म के सामने सेट ऑफ होता है, बट शॉर्ट टर्म का लॉस वी कैन सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो 5,10,000 रुपीज का शॉर्ट टर्म का लॉस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने सेट ऑफ कर ही सकता हूं। तो यहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन गाइस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट है दैट इज बट 5,50,000। 5,50,000 में से शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस सेट ऑफ होगा 5,10,000 रुपीज का। 5,10,000 का लॉस सेट ऑफ करने के बाद रिमेनिंग 40,000 रुपीज जो इनकम है वो मिसेस चमन के हाथ में एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, मिस नैना, देयर माइनर डॉटर earn 3,56,000 by performing in various quiz competition held online during the year। कहना से क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके इनकम कमाया, तो वो उसने खुद के स्किल एंड टैलेंट से कमाया, तो ये इनकम मिस नैना के हाथ में, खुद के हाथ में टैक्सेबल की जाएगी। तो यहां पे नैना, इनकम क्विज कंपटीशन, खुद के स्किल एंड टैलेंट से है तो वहां पे क्लबिंग नहीं आएगा। वो इनकम जो है 3,56,000 नैना के हाथ में टैक्सेबल किया जाएगा। आगे नेक्स्ट, शी केप्ट दैट अमाउंट इन सेविंग अकाउंट एंड अर्न इंटरेस्ट 15,000 ड्यूरिंग द ईयर 2023। नाउ मुझे पता वो जो क्विज कंपटीशन से पैसा मिला था वो उन्हें क्या किया, बैंक में रख के वहां से सेविंग बैंक का इंटरेस्ट कमाया। क्या ये पैसा खुद के स्किल एंड टैलेंट से कमाया? नहीं सर। क्या ये बच्ची हैंडीकैप चाइल्ड ऐसा कुछ बोला है? नहीं। तो यहाँ पे 15,000 रुपीज के ऊपर क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। नाउ डोंट मेक एनी सिली मिस्टेक। यहाँ पे मेजर स्टूडेंट का मिस्टेक क्या होगा, स्टूडेंट बोलेगे सर ये भी तो एक्रीशन ऑफ इनकम है, सेकेंड जनरेशन इनकम है। सेकेंड जनरेशन इनकम वाला जो कंसेप्ट था वो सिर्फ और सिर्फ स्पाउस, सन्स वाइफ या एनी अदर पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस और सन्स वाइफ वहां पे एप्लीकेबल होगा। माइनर चिल्ड्रन के केसेस में सिर्फ 2 केसेस में एज आई टोल्ड यू क्लबिंग एप्लीकेबल नहीं होगा। पहला, अगर माइनर ने खुद के स्किल, टैलेंट या मैनुअल वर्क से इनकम कमाई है, या तो फिर माइनर बच्चा हैंडीकैप है। ओनली इन दिस 2 केसेस क्लबिंग प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल। बाकी सब केसेस में क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल होकर रहेगा। अच्छा सर, माइनर को बर्थडे के टाइम पे गिफ्ट मिला, माइनर के छोटे छोटे फ्रेंड्स आए बर्थडे के टाइम पे और वो छोटे छोटे फ्रेंड्स ने माइनर बच्चे को गिफ्ट दिया। गिफ्ट का, कैश गिफ्ट का अमाउंट सर 30,000 रुपया पूरे साल का। क्या क्लबिंग होगा वो? आंसर इज यस, लेकिन वो स्किल एंड टैलेंट से नहीं है। क्लबिंग इनकम टैक्सेबल तो होगा, लेकिन आप ना कैश गिफ्ट में, इफ यू रिमेंबर 50,000 रुपीज तक का कैश गिफ्ट एग्जेम्प्ट होता है। तो पेरेंट्स के हाथ में सिंस इट इज अमाउंट 30,000 विच इज लेस देन 50,000 है, देयरफॉर वो फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन सर अगर माइनर को अलग अलग छोटे फ्रेंड से 51,000 कैश गिफ्ट मिला था, 51,000 विच इज मोर देन 50,000 है, मोर देन 50,000 है, तो ऑफकोर्स वो गिफ्ट अमाउंट क्या किया जाएगा, पेरेंट्स के हाथ में क्लब किया जाएगा। लेकिन क्लब करते वक्त अगर वो ओल्ड टैक्स रिजाइम में है, डिफॉल्ट में नहीं ओल्ड में, तो 51,000 में से 1,500 माइनस करके रिमेनिंग 49,500 जो है वो क्या किया जाएगा, क्लब किया जाएगा। अभी आप ऐसे नहीं बोल सकते सो 49,500 मतलब लेस देन 50। पहले ये चेक करो बेटा कि अमाउंट ऑफ कैश गिफ्ट कितना है, मोर देन 50 या लेस देन 50। अगर मोर देन 50 है तो टैक्सेबल है, टैक्सेबल है उसके बाद में आपको 1,500 रुपीज का स्टैंडर्डेशन देना है। पहले ही स्टैंडर्डेशन देने के बाद फिर ये डिसाइड मत करो कि वो इनकम टैक्सेबल है एग्जेम्प्ट है। पहले ये चेक करो कि आपका कैश गिफ्ट का अमाउंट कितना है। इफ इट इज अप टू 50 होगा तो फुली एग्जेम्प्ट है। मोर देन 50 है, टैक्सेबल है, टैक्सेबल है तो 1,500 रुपीज का स्टैंडर्डेशन माइनस करने के बाद रिमेनिंग इनकम पेरेंट्स के हाथ में क्लब किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पे 15,000 रुपीज का सेविंग बैंक इंटरेस्ट है, तो सेविंग बैंक इंटरेस्ट क्या किया जाएगा, क्लब किया जाएगा। लेकिन अगेन यहां पे टोटल इनकम पूछा है। टोटल इनकम मतलब ऑफ कोर्स हम लोग एनटीआई निकालेंगे। सर एनटीआई निकालते वक्त चैप्टर 6 से का भी तो बेनिफिट दिया जाएगा। यहां पे उसने बोला है कि इग्नोर सेक्शन 115 बीएसई, तो ये 15,000 रुपीज जब भी क्लब कर रहे हैं तो 80 टीटीए सेविंग बैंक इंटरेस्ट का डिडक्शन भी मिलेगा। अच्छा सर, पेरेंट्स सीनियर सिटीजन तो नहीं है ना? नहीं है। जो भी पेरेंट्स है जिसके हाथ में क्लब हो रहा है, देखेंगे हम लोग सीनियर सिटीजन नहीं है तो 80 टीटी भी नहीं, क्योंकि सीनियर सिटीजन रहते तो फिर 80 टीटी भी आता। यहाँ पे 80 टीटीए का सेविंग बैंक इंटरेस्ट का एडिशन भी मिलेगा। तो पहले ये चेक करते हैं कि कौन से पेरेंट्स की इनकम ज्यादा है। मिस्टर चमन इनकम 11 लाख रुपीस, मिसेस चमन की इनकम 2,50,40 2,90,000 रुपीस है। सो क्लियर कट दिख रहा है मिस्टर चमन हैविंग हायर इनकम, तो मिस्टर चमन के हाथ में क्या किया जाएगा, वो इनकम क्लब की जाएगी। सो सेविंग बैंक इंटरेस्ट 15,000 माइनस exempt under section 10 clause 32
1500 रुपीज, रिमेनिंग 13,500 क्लब किया जाएगा. नेक्स्ट, मास्टर नीलम, their minor son earned 35,000 rupees from fixed deposit which was made out of cash he received on his birthday from his friend and family. मुझे बना सर यहाँ पे पहले तो पैसे डिपॉजिट किए, कितना कैश मिला था वो नहीं बोला, लेकिन वो डिपॉजिट करके फिक्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट मिला है. नाउ नीलम सफर फ्रॉम डिसेबिलिटी एज मेंशन अंडर सेक्शन 80U. 80U मतलब ये फिजिकली हैंडीकैप है. मेडिकल सर्टिफिकेट शोज डिसेबिलिटी अप टू 75%. तो यहाँ पे भी क्लबिंग प्रोविजन नहीं आएगा. मतलब ये इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल की जाएगी? नीलम के हाथ में. तो यहाँ पे मास्टर नीलम, एफडी इंटरेस्ट पूरा 35,000 रुपीज जो है वो मास्टर नीलम के हाथ में टैक्सेबल होगा. ना ये सब ऐड करोगे तो आपको मिलेगा ग्रॉस टोटल इनकम चरण के हाथ में 11 लाख प्लस 13,500. 11 lakh, 13,500, 2,90,000, 3,56,000, 35,000. इसमें से माइनस डिडक्शन चैप्टर 6 से. चैप्टर 6 से में चमन को 80 TTA में डिडक्शन मिलेगा. 80 TTA में एक्चुअल अमाउंट आपका इंटरेस्ट का है 13,500, लेकिन मैक्सिमम डिडक्शन मिलता है 80 TTA में 10,000. तो विच इज लोअर के हिसाब से 10,000 का डिडक्शन मिलेगा. फिर नीलम 35,000 रुपीज का एफडी इंटरेस्ट है. हैंडीकैप है तो हैंडीकैप को सेक्शन 80U में डिडक्शन मिलेगा. 80U में डिडक्शन लेने के लिए 75% डिसेबिलिटी मतलब नॉर्मल डिसेबिलिटी है लेस देन 80, तो फ्लैट 75,000 रुपीज का डिडक्शन मिलता है. बट यहाँ पे आपकी इनकम ही 35,000 रुपीज है तो पूरा 35,000 रुपीज का डिडक्शन मिलेगा. माना फ्लैट डिडक्शन मिलता है, लेकिन फ्लैट डिडक्शन लेने के लिए आपका जीटीआई भी तो चैप्टर 6 से ज्यादा होना चाहिए. अगर ये 75,000 से ज्यादा होता तो मैं पूरा 75,000 का डिडक्शन ले लेता, बट मेरा जीटीआई 35,000 ही है एंड योर चैप्टर 6 से का अमाउंट कैन नॉट बी मोर देन डिडक्शन जीटीआई. इसके लिए मुझे चैप्टर 6 से 35,000 तक ही रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा. सो 11,13,500 माइनस 10,000 करोगे तो ये आएगा अपना 11,03,500, 2,90,000, 3,56,000 एंड ये आएगा अपना नील. दिस इज योर नेट टैक्सेबल इनकम. ठीक है, ये पूछा था आपने को टोटल इनकम इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एंड मिसेस चमन एंड देयर माइनर चिल्ड्रन फॉर द असेसमेंट ईयर. सेक्शन 115 BA से इग्नोर करने के लिए बोला था. ये अपना फाइनल आंसर आएगा. चलो नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 जो नवंबर 22 में अगेन क्वेश्चन पूछा था. From the following transactions compute the total income of Mr. Raman and his wife Savita for the assessment year 2023. अभी assessment year 20 to 23 मतलब previous year 21-22 होगा, बट हम लोग हमारे relevant previous year के हिसाब से solve करेंगे. ठीक है. Mr. Raman had fixed deposit of rupees 5 lakh in a bank. He instructed the bank to credit the interest on deposit at 6% per annum from 1st April 21 to 31st March 22 to the saving account of his brother's son for his education. रमन के पास कुछ FD है 5 लाख रुपीस का. इस 5 लाख रुपीस FD के ऊपर दे आर गेटिंग इंटरेस्ट 6% पर एनम, बट उसने बैंक को डायरेक्शन दिया हुआ है 1st April 21 से लेके 31st March 22 का FD का इंटरेस्ट कितना रुपीस आएगा? 5 लाख इंटू 6% 30,000. ये 30,000 रुपीस का सेविंग अकाउंट ऑफ हिज ब्रदर सन फॉर हिज एजुकेशन के लिए ट्रांसफर किया जा रहा है. तो सब ब्रदर सन को आपने क्या ट्रांसफर किया? एफडी या एफडी का इंटरेस्ट ट्रांसफर किया विदाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. तो यहाँ पे सेक्शन 60 एप्लीकेबल हो जाएगा और सेक्शन 60 के हिसाब से इनकम जो है वो इनकम किसके हाथ में क्लब की जाएगी? रमन के हाथ में इनकम टैक्सेबल की जाएगी. सेकेंड, सविता इज अ बीकॉम ग्रेजुएट and working in the ABC Private Limited as an accountant with a monthly salary of rupees 25,000. Raman hold 30% equity shares of ABC Private Limited. Now ABC Private Limited के रमन के पास 30% होल्डिंग है, मतलब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है. लेकिन किधर भी ये लिखा कि सविता शी इज गेटिंग सैलरी विदाउट एनी नॉलेज एक्सपीरियंस. नहीं, इनफैक्ट उल्टा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि शी इज अ बीकॉम ग्रेजुएट है. बीकॉम ग्रेजुएट है मतलब क्वालिफाइड पर्सन है फॉर द जॉब and she is getting salary in a normal manner only. तो यहाँ पे सेक्शन 64 सबसेक्शन 1-2 एप्लीकेबल नहीं होगा.
64(1)(2) कभी एप्लीकेबल होता है ओनली इफ रेम्युनरेशन पेड टू स्पाउस विदाउट एनी नॉलेज और एक्सपीरियंस। यहां पे ऐसा कोई क्वेश्चन हम लोग को हिंट नहीं दे रहा है। इनफैक्ट क्वेश्चन में बोला तो वो तो बीकॉम ग्रेजुएट है, बीकॉम ग्रेजुएट है तो वो इनकम जो है वो इनकम सविता अकेडमी में टैक्सेबल होगी, तो ये टैक्सेबल होगा, लेकिन सिर्फ से सविता अकेडमी में टैक्सेबल होगा, यहाँ पे क्लबिंग नहीं आएगा। नेक्स्ट, रमन स्टार्टेड प्रोप्राइटरी बिजनेस ऑन 1 April 20 with a capital of rupees 10 lakh. He incurred loss of rupees 2 lakh during the previous year 2021. To overcome the financial position, Savita gifted a sum of rupees 4 lakh to him on 1 April 21, which was immediately invested in the business by Mr. Raman. He earned a profit 3 lakh rupees during the previous year 21-22. पहले 2021 में लॉस हुआ था कितना रुपीस का, 2 लाख रुपीस। रमन का बिजनेस में कैपिटल था 10 लाख, इसमें से लॉस हुआ 2 लाख रुपीस, तो रमन का कैपिटल बिजनेस में अभी 8 लाख रुपीस बचा हुआ है। क्लोजिंग कैपिटल 8 लाख, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होगा। नेक्स्ट ईयर में 1 April 21 में उसके वाइफ सविता ने गिफ्ट दिया 4 लाख रुपीस, तो मैं बोलूं 1 April 21 को बिजनेस के अंदर रमन का कैपिटल 8 लाख रुपीस लगा हुआ है एंड सविता का कैपिटल 4 लाख रुपीस लगा हुआ है। ये कैपिटल में से उन्होंने प्रॉफिट कमाया 3 लाख रुपीस का। ये 3 लाख रुपीस का प्रॉफिट 8:4 या 2:1 के रेशियो में क्या किया जाएगा, रमन और सविता के हाथ में स्प्लिट किया जाएगा। 2021 में क्लबिंग नहीं आएगा बिकॉज वहां पे कोई गिफ्ट नहीं मिला था। 21-22 में फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर क्लब गिफ्ट मिला है, तो उस साल के लिए क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 4, साजन यंगर सन ऑफ रमन एज 17 years मतलब माइनर चाइल्ड who won in a debate competition during the annual competition held at his school and received cash award 10,000। तो कैश अवार्ड कंपटीशन में से मिला है तो स्किल एंड टैलेंट है, तो वो इनकम क्लब नहीं होगी। एंड ऑल्सो अर्न इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 7,000 ऑन अ बैलेंस मेंटेन सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट दैट इज नॉट स्किल एंड टैलेंट, तो ऑब्वियसली ये इनकम क्या किया जाएगा, रमन या तो फिर सविता जिसकी भी इनकम हायर है उनके हाथ में क्या किया जाएगा, क्लब किया जाएगा। तो यहां पे इनकम कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले रमन, उसके बाद में सविता। चलो इनकम के अंदर पहला ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इनकम 30,000, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इनकम सेक्शन 60 के हिसाब से रमन के हाथ में 30,000 टैक्सेबल होगा। सविता बीकॉम ग्रेजुएट, सैलरी मिल रहा है 25,000 एवरी मंथ, तो 25,000 इंटू 12 मंथ 3 लाख रुपीस का सैलरी मिला है। इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 50,000 रुपीस का, 30,000 माइनस 50,000 माइनस करोगे, रिमेनिंग 2,50,000 सविता के हाथ में टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट थर्ड, रमन स्टार्टेड प्रोप्राइटरी बिजनेस, तो प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस 3 लाख रुपीस है। 3 लाख रुपीस का प्रॉफिट जो है वो क्या किया जाएगा, स्प्लिट किया जाएगा 8:4 मतलब 2:1 के रेशियो में, तो 2 लाख 1 लाख। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस रमन के हाथ में 2 लाख रुपीस प्रॉफिट टैक्सेबल होगा, सविता के हाथ में 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट टैक्सेबल होगा। नाउ संजय यंगर सन, कंपटीशन वाला तो उसके हाथ में टैक्सेबल होगा। यहाँ पे और एक कॉलम बना देता, संजय कंपटीशन इनकम 10,000 संजय के हाथ में टैक्सेबल होगी। उसके बाद में सेविंग बैंक इंटरेस्ट, नाउ हु इज हैविंग हायर इनकम, रमन का टोटल इनकम 2 लाख प्लस 30 2 लाख 30 और इनका इनकम सविता का 2 लाख 50 प्लस 1 लाख मतलब 3 लाख 50 3 लाख 50 मतलब सविता का हायर इनकम है, तो सविता के हाथ में माइनर चिल्ड्रन की इनकम टैक्सेबल होगी। सेविंग बैंक इंटरेस्ट 7,000 रुपीज, उस 7,000 रुपीज में से 1,500 रुपीज का एग्जेम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन 1032 1,500 माइनस करोगे तो रिमेनिंग 5,500 इनकम क्लब किया जाएगा। ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख 30 रमन का
3,50,000 plus 5,500, 3,55,500, 10,000 minus deduction चैप्टर 6 है, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 में सेक्शन 80 TTA सेविंग बैंक इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा. सेविंग बैंक इंटरेस्ट है 5,500, मैक्सिमम डिडक्शन 10,000 रुपीज़ का मिलता है, विच इज़ लोअर के हिसाब से 5,500 का डिडक्शन मिलेगा. सो 2,30,000, 3,50,000 एंड 10,000 रुपीज़. ये आपका NTI है, नेट टैक्सेबल इनकम रिस्पेक्टिव एसएससी के हाथ में टैक्सेबल होगा. ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2, जो अगेन नवंबर 22 पेपर में क्वेश्चन नंबर 4C आपको पूछा था. वन लास्ट क्वेश्चन जो मैंने ICI मटेरियल में से लिया है, मैं सिर्फ ओरली ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ. ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ मिस्टर A. Mr. A had a fixed deposit of rupees 5 lakh in Bank of India. He instructed bank to credit the interest 9% per annum from 1st April 23 to 31st March 24 to the saving bank account of Mr. B, son of his brother, to help him in his education. Similar adjustment अभी ऊपर क्वेश्चन में भी हम लोग ने किया था. तो दिस इज अगेन सेक्शन 60 के हिसाब से ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. 5 लाख का 9% दैट इज 45,000. ये 45,000 किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? मिस्टर ए के हाथ में टैक्सेबल किया जाएगा. नेक्स्ट, मिस्टर ए होल्ड 75% प्रॉफिट शेयर इन अ पार्टनरशिप फर्म. मिसेस ए रिसीव कमीशन 25,000 फ्रॉम अ फर्म प्रमोटिंग द सेल ऑफ द फर्म. मिसेस ए possess नो टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन. जो क्लियर कट क्वेश्चन में बोला है दैट स्पाउस नॉट हैविंग एनी नॉलेज, एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन. क्या हस्बैंड का पहले तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है? हाँ सर, 75% प्रॉफिट शेयरिंग मतलब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है. तो ये 25,000 जो कमीशन है वो सेक्शन 64(1)(2) के हिसाब से क्या किया जाएगा? मिस्टर ए के हाथ में क्लब किया जाएगा. तो कमीशन जो है मिस्टर ए के हाथ में सेक्शन 64(1)(2) के हिसाब से क्लब किया जाएगा. थर्ड, नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट. सी, मिस्टर ए गिफ्टेड फ्लैट टू मिसेस ए ऑन 1st April 23. During the previous year 23-24, income from house property computed 52,000 from such flat. A ने मिसेस ए को फ्लैट दिया है, तो यहाँ पे सेक्शन 27 डीम ओनर वाला कंसेप्ट आएगा. स्पाउस को आपने गिफ्ट दिया है, तो डीम ओनर के हिसाब से जो भी इनकम है हाउस प्रॉपर्टी की 52,000 वो किसके हाथ में क्लब की जाएगी? अगेन मिस्टर ए के हाथ में क्लब की जाएगी. मिस्टर ए ने फ्लैट मिसेस ए को दिया है, भले इनकम मिसेस ए को मिल रही है, बट ट्रांसफरर को इसको डीम ओनर मान के 52,000 मिस्टर ए के हाथ में टैक्सेबल किया जाएगा. एंड नो नीड टू सपरेट 30% का स्टैंडर्डेशन एज इट इज इनकम ऑलरेडी कंप्यूटेड. नेक्स्ट, मिस्टर ए गिफ्टेड 2 लाख रुपीज टू हिज माइनर सन हु इन्वेस्टेड द सेम इन द बिजनेस एंड डिराइव इनकम 20,000 फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट. 2 लाख रुपीज जो दिया है वो 2 लाख रुपीज ए ने अपने बच्चे को गिफ्ट दिया है, तो बच्चे को जो गिफ्ट दिया दैट इज एग्जेम्प्ट होगा. रिलेटिव्स को गिफ्ट मिला है, वो पैसा इन्वेस्ट करके बिजनेस इनकम कमाया. तो बिजनेस इनकम क्या उसने स्किल एंड टैलेंट से कमाया, ऐसा कुछ बोला है? नहीं. तो ये 20,000 जो है वो क्या किया जाएगा? क्लब किया जाएगा. नाउ किसके हाथ में क्लब करेंगे? द पेरेंट हु इज हैविंग हायर इनकम. देखेंगे आगे. मिस्टर एज माइनर सन डिराइव इनकम 20,000 थ्रू बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द एप्लीकेशन ऑफ हिज स्किल एंड टैलेंट. मुझे 2 बच्चे इसके, एक माइनर बच्चे को उन्होंने खुद ने 2 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट करने के लिए दिया था, वहां से 20,000 रुपीज इनकम कमाई, इन्वेस्टमेंट इनकम. एंड दूसरा जो है माइनर बच्चा, उसने खुद के स्किल एंड टैलेंट अप्लाई करके 20,000 रुपीज का बिजनेस इनकम कमाया. तो ये स्किल एंड टैलेंट है, तो यहां पे क्लबिंग इज नॉट एप्लीकेबल. क्लबिंग नॉट एप्लीकेबल मतलब वो इनकम उसी माइनर बच्चे के हाथ में टैक्सेबल होगी. मिस्टर ए गॉट अ मंथली पेंशन 10,000 रुपीज, मतलब पूरे साल का पेंशन 1,20,000 मिला होगा. 1,20,000 में से 50,000 का स्टैंडर्डेशन माइनस करोगे तो 70,000 रुपीज इनकम फ्रॉम सैलरी मिस्टर ए के हाथ में टैक्सेबल होगा. ही हैड नो अदर इनकम. मिसेस ए रिसीव सैलरी 20,000 पर मंथ फ्रॉम अ पार्ट टाइम जॉब. 20,000 रुपीज सैलरी, 20,000 इंटू 12, 2,40,000. 2,40,000 में से 50,000 का स्टैंडर्डेशन माइनस करोगे तो 1,90,000 ये मिसेस ए की इनकम है. नाउ मिसेस ए की इनकम फ्रॉम सैलरी इनकम 1,90,000. मिस्टर ए की इनकम देखते हैं और क्या क्या है मिस्टर ए के हाथ में. मिस्टर ए की अगर बात करो तो मिस्टर ए के पास इनकम के फॉर्म पे कहना चाहिए 45,000 रुपीज है, प्लस 25,000 रुपीज है, प्लस 52,000 रुपीज है.
तो मिस्टर ए की इनकम 45,000 प्लस 25,000 प्लस 52,000 प्लस सैलरी उसकी 70,000, 1,92,000 रुपीज की इनकम मिस्टर ए की निकल के आ रही है और मिसेस ए की इनकम सिर्फ 1,90,000 है. तो हु इज हैविंग हायर इनकम? कैन आई से मिस्टर ए 1,92,000 हैविंग हायर इनकम. मिस्टर ए हैविंग हायर इनकम, तो वैसे वाले केसेस में इनकम जो है वो इनकम क्या की जाएगी? क्लब की जाएगी. नाउ माइनर चिल्ड्रन का इनकम जो है ये 20,000 रुपीज में से 1,500 रुपीज माइनस करोगे. माइनस करने के बाद रिमेनिंग 18,500 मिस्टर ए के हाथ में क्लब किया जाएगा. 192 प्लस 18,500 करोगे तो 2,10,500 ये मिस्टर ए का इनकम निकल के आएगा और मिसेस ए का इनकम 1,90,000 रुपीज इनकम आएगा. ठीक है, तो ये आपके ICI स्टडी मटेरियल में से ही क्वेश्चन है. टेस्ट योर नॉलेज में आप देखोगे तो आपको डिटेल में आंसर मिल जाएगा. मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया. सो आई होप ये 3 क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किए क्लबिंग ऑफ इनकम एंड जो कंसेप्ट्स आपके साथ मैंने डिस्कस किए वो आपको अच्छे समझ में आ गए रहेंगे. नाउ योर टास्क इज आफ्टर वॉचिंग दिस रिवीजन वीडियो इमीडिएटली आपको JKSC टेक्स्ट बुक में से क्लास वर्क या होमवर्क सेक्शन में से जो भी आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन लगते हैं जो आपने मार्क करके रखेंगे वो एक बार बिना सॉल्यूशन देखे आपको सॉल्व करना है. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ. थैंक यू गाइस.